جی 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 السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام جی خان صاحب ارشد صاحب جی بول رہا ہوں مشیگن کیسے ہیں ارشد صابری فرام مشیگن. اچھا ارشد السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی بتائیے. ہلو جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی خان صاحب مجھے جی آپ ساری ٹریولنگ پر مجھے آ رہی ہے آواز. جی آپ بتائیے اپنے خان صاحب آپ ہی بتا دیں بجائے اس کے کہ میں بتاؤں آپ ہی پلیز بتا دیں میک اٹ ایزیئر فار می. آپ ہی بتا کیا میں کیا بتاؤں ارشد؟ حکم کریں کتنا. نہیں ارشد دیکھیں ہمیں فورن فنڈنگ کی ضرورت ہے. ہم یہ پیسے اکٹھے کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اللہ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے تو ہم خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانی جو کہ اس وقت سب سے زیادہ موبلائز ہوتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کتنا ڈونیٹ کریں گے. ماشاء اللہ 5 کروڑ. تھینک یو ارشد. 5 کروڑ فورن فنڈنگ آ گئی ہے. 5 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم پہنچ چکے ہیں 85 کروڑ 10 لاکھ پہ. 85 کروڑ 10 لاکھ. ماشاءاللہ یہ اس قوم کا جذبہ ہے. یہ 12 بجے تک جاری رہے گی ٹرانسمیشن تو آپ آئیں جلدی سے اور بڑھ چڑھ کے کنٹریبیوٹ کریں سب مل کے. اور آج آ رہا تھا 40,000 پاؤنڈ میرے ایک دوست نے پلیج کیا ہے, بڑا انڈسٹریلسٹ ہے مینچسٹر کا. سو ان کی طرف سے ہوپ فلی وہ بھی جلد آ جائے گی. وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں. تو میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خان صاحب کا ہی ہے الحمدللہ کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. ورنہ آج جگن سے بھی بات ہو رہی تھی جو سیکرٹری جنرل ہے ریڈ کراس کا کہ ریپوٹیشنلی چیلنجڈ ہے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے نا. سو ایشو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا ہے اس وجہ سے. تو الحمدللہ ہم شکر کرتے ہیں کہ خان صاحب ہیں ان کی وجہ سے جو ہے ہمارے بالخصوص ایکسپیٹریٹس بڑا جنرسلی ڈونیٹ کرتے ہیں. اب 40,000 بتا رہے ہیں 40,000 پاؤنڈ 40,000 پاؤنڈ. یہ کال سینٹر آپ ایڈ کر لیں. نام کیا ان کا؟ میں آپ کو نام بتا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی ایک مایہ ناز سپر سٹار. جب ذکر ہو تنہائیاں کا, جب ذکر ہو انکہی کا, شناز شیخ صاحبہ. بڑے عرصے بعد ہم آپ کو ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھیں گے. کیا ہی مومنٹ ہے ایک نیشنل کاز کے لیے آپ یہاں پہ ہیں. السلام علیکم شناز صاحبہ. بہت بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھ رہی ہیں جو قوم کا جذبہ ہے. عتیقہ اوڈو بھی اب آ چکی ہیں, ہمیں جوائن کر لیا انہوں نے. تو ابھی تک ہم 80 کروڑ 10 لاکھ پہ ود ان نو ٹائم پہنچ گئے ہیں. جذبہ دیکھ رہی ہیں آپ قوم کا؟ بالکل اور میں تو کہتی ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. We are going to go far اور دیکھنا we are going to make a lot of contributions because Pakistanis are so amazing. جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے اور جب بھی ہوئی ہے تو میں نے دیکھا ہے, مجھے یاد ہے بالا کوٹ کا بھی جب زلزلہ وغیرہ آیا تھا تو amazing unbelievable. اور ہمارے جو overseas Pakistanis ہیں, my friends and everybody who's there, they have never let us. انہوں نے کبھی بھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. اور یہ مین چیز تو یہی ہے نا کہ where is this money going. The thing is کہ they have to know کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. And I'm glad that Khan Sahab is heading this thing because this is the only thing that is going to get the money together. بہت شکریہ. زاہد نام ہے ان کا. 40,000. جی شناز شیخ صاحبہ پاؤنڈز کے انہوں نے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, واپس آتے ہیں. جی کالر السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی چلے آواز آتی ہے. عتیقہ اوڈو صاحبہ بہت بہت شکریہ. 2010 میں مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب فلڈ ریلیف پہ کام کر رہے تھے تو آپ وہاں پہ آئی تھیں ادھر. تو کیا کہنا؟ شکریہ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کام ایسا ہے کہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. اور خان صاحب کے ساتھ ہم نے پکار میں بہت کام کیا. اس وقت بھی جب یہ فلڈ آیا تھا تو یہ اب تو بہت ہی بڑا ایک یہ سانحہ ہے اور میں سمجھتی ہوں سب کو مل جل کے کرنا چاہیے. اور یہ عمران خان صاحب کی یہ ایک بہت بڑی ایک چیز ہے کہ ہم نکلتے ہیں ان کے لیے بیکاز وی ٹرسٹ ہم. وی نو کہ وہ جو چیز آپ دیں گے وہ نظر بھی آئے گی. آپ ہسپتال دیکھ لیں, آپ ریلیف ایفرٹس دیکھ لیں, سب کچھ دیکھ لیں آپ.
तो मेरी इल्तिजा है सबसे कि अल्लाह के वास्ते आप सोचिए मत, क्योंकि अगर आप अभी आके देखें वो लोग जो डूब रहे हैं ना पानी में, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, रात को बिजली नहीं है, पानी में सो रहे हैं लोग। खुदा के वास्ते आप लोग प्लीज़ आगे बढ़ें और इनकी हमारी उन लोगों की मदद करें ताकि हम इन सब तक इमदाद, खाना, दवाइयाँ, शेल्टर, ये चीज़ें पहुंचा सकें। जी आपकी कॉल्स आ रही हैं 009242387222। कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मलिक तनवीर अहमद। जी जी मलिक। दो कॉलर्स क्रॉस। हाँ, दो कॉलर्स की आवाज आ रही है, आप इसको सॉर्ट आउट कर लें उतनी देर। हेलो। जी 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 मैं मलिक तनवीर अहमद मलेशिया से बोल रहा हूँ जी। जी जी मैं मलेशिया से पीटीआई प्रेसिडेंट हूँ जी। और हमने कल कॉल की थी, छोटी सी कॉल में हमने 1 करोड़ 25 लाख जो है वो मैंने और मेरी टीम ने जमा किया है, तो इंशाल्लाह जो है वो इस फंड में। तो मैं अस्सलाम वालेकुम खान साहब। मैं देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है कि तहरीक इंसाफ के लोग हमेशा जब भी हमें कोई में पैसे इकट्ठे करने होते हैं किसी भी मसले के लिए, तो ये बड़ी अच्छी आपकी ट्रेनिंग हो रही है हमारी पार्टी की कि वो ये समझते हैं कि सियासत इबादत है, कि आप सिर्फ यही नहीं कि आप पावर पॉलिटिक्स करें, आप खिदमत भी करते हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि मलेशियन चैप्टर ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा किया। एक दिन के बहुत मुबारक हो आपको। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब? जी नाम बताइएगा। हेलो। जी जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अभी मैं बात कर ही रहा था खान साहब से, तो बात करी। मैं मलिक तनवीर ही बोल रहा हूँ मलेशिया से जी। जी जी तनवीर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाकियों को। जी तनवीर साहब, बात हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ। देखिए, एक गुजारिश है कॉलर से कि एक तो अपने टीवी की आवाज बंद कर कीजिए ताकि आप हाँ यहाँ से हमें सुन रहे हैं, आपको आसानी होगी। दूसरी चीज, मुख्तसर रखिए अपनी बात, क्योंकि बहुत मुझे कॉल सेंटर से बताया जा रहा है कि बहुत से ज्यादा लोग जो है वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से वो उनकी बात हो जाए। तो 12 calls lined up. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हफीज चौधरी न्यूयॉर्क से। जी हसीब चौधरी साहब न्यूयॉर्क से। हफीज, क्या हाल है आपका? हफीज को मैं पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं। हफीज, हमेशा हफीज ने जब भी पाकिस्तान में किसी चीज की जरूरत होती है, लोगों के भले के लिए हफीज हमेशा सामने आता है। जी हफीज। हफीज भाई। हाँ साहब, मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि डॉक्टर इकरार ने कहा था कि जो एक्टिव लोग होते हैं वो 3 तरह के काम करते हैं। एक इस्लाही, जो आपने शौकत खानम बनाए 3 और नंबल यूनिवर्सिटी और ये सारा, फिर एक पॉलिटिकल जो आप कर रहे हैं पीटीआई, फिर रेवोल्यूशनरी। तो अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार सलाहियतें दी हैं, आप हर काम में फ्रंट फुट पे हैं माशाल्लाह। और मैं यहाँ ये एक और मैंने 1 करोड़ रुपया सीएम पंजाब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। एक्सीलेंट, शुक्रिया हफीज, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज चौधरी साहब। हाँ साहब, एक चीज़ है, बहुत से लोग जाहिर है इस कॉज के साथ जुड़ते हैं और वॉलंटियर्स होते हैं, लेकिन उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती, तो बहुत से लोग कैश भी रिसीव कर रहे होते हैं। अपनी अच्छी, उनकी नीयत अच्छी होती है, लेकिन लोग जो हैं इतने कंफर्टेबल नहीं होते इस चीज़ से। तो आप क्या कहेंगे कि क्या ज़ाहिर आपने ये अकाउंट, तो इस पर तो सिर्फ आप अकाउंट के अंदर ही पैसे डालने की हिदायत देंगे ना लोगों को? देखिए, मैं सबके लिए, क्योंकि मैं प्रॉब्ली पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देर फंड रेजर रहा हूँ, यानी 30 साल से मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा अल्लाह का करम है कि लोगों ने मुझे पैसा दिया। सबसे पहले जो हमारी पार्टी के या कोई भी लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आपको पैसा कभी कैश इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कैश आपको सिर्फ
भेजना चाहिए या इस अकाउंट या कोई सिक्योर अकाउंट पे पैसा जाना चाहिए और वो अकाउंटेबल होना चाहिए। आपको चीज़ें वो लेनी चाहिए, मसलन जो अब सैलाबज़दा इलाकों में लोगों के कपड़ों की ज़रूरत होगी, तंबुओं की ज़रूरत होगी, तो वो मटीरियल चीज़ें लें, लेकिन कैश ना लें, क्योंकि कैश को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कभी कैश हैंडल नहीं करता, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि चेक दो, या अगर कैश है तो वो डायरेक्टली अकाउंट में जाना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको सबके लिए कि अगर आप, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप नौजवान हैं और आपके पास ज़ाहिर है आपके पास पैसा नहीं है डोनेट करने के लिए, आपको वॉलंटियर करना चाहिए। हमारा जो टाइगर फोर्स है इसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी देर तक ये मसला रहेगा। लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनके घर उजड़ गए हैं, उनकी मदद करने के लिए गवर्नमेंट के पास इतने लोग नहीं हैं कि वो इतना बड़ा इलाके को कवर करें, तो उसके लिए एक बड़ी रजाकार फोर्स चाहिए होगी। तो आप सब रजिस्टर करें, हम आपको ऑर्गेनाइज करेंगे। और फिर तीसरी चीज़ मैं आपको कह दूं, तीसरी चीज़ कि हम यहाँ से कंट्रोल सेंटर बनाएंगे। जो भी कोई NGO हो, कोई ग्रुप हो, कोई लोगों ने फैसला किया मोहल्ले में कि हम मदद करना चाहते हैं, हम यहाँ से आपको गाइड करेंगे कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये इलाके हैं जिधर लोगों को मदद की ज़रूरत है, ताकि एक सारों को सबकी एफर्ट गाइड करें। जब मैं पहले 2010 में देखा या उससे ज़लज़ले में, तो सब लोग एक ही जगह पहुंच जाते थे और बाकी इलाके में लोगों के बड़े बुरे हालात थे, उनको कोई पूछता नहीं था क्योंकि कोई गाइड नहीं करता था। इस बारी हम एक कंट्रोल रूम बना के सबको गाइड करेंगे कि कोई भी पूछना चाहे कि मैं मदद करना चाहता हूँ तो कौन से इलाके में, तो हम फिर आपको गाइड करेंगे, ताकि सारे पाकिस्तानी एक पूरी जॉइंट एफर्ट हो सारी कौम की। जी हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा भैया, मैं कराची से बात कर रहा हूँ और बंदा अल्लाह का बंदा, बस नाम यही है जी। अच्छे कामों में नाम सामने नहीं लाना चाहते, ठीक है। वो दिलदार जी। प्रोफेसर बैठी हो। जी जी जी। अच्छा, मैं अपने दोस्तों के साथ मैंने मिलकर कुछ जमा किया है और 70 मिलियन रुपीस मैं दे रहा हूँ आपको खान साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले हम अब कहेंगे अल्लाह का कोई बहुत ही दरवेश इंसान है जो नाम भी नहीं सामने लाना चाहता, 70 मिलियन। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह दूं आपके लिए कि देखिए, क्योंकि मैं 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। दो टाइप लोग होते हैं। देखिए, एक तो आपको कभी भी एहसान जताना नहीं चाहिए जब आप किसी की मदद करें, आप अल्लाह के लिए करें। लेकिन एक वो लोग होते हैं जब वो पैसा देते हैं तो और लोग इनकरेज होते हैं, तरगीब। यानी लोगों को आप इनकरेज करने के लिए भी फंड रेजिंग करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जी खलील रहमान कमर ने हमें ज्वाइन किया, मुल्क के मायनाज राइटर हैं। इसी बहाने दीगर बातों के साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा, मशवरा भी है कि इस मौजू को भी कभी अपनी कहानियों में, अपने ड्रामाज में लेकर आइए तो चार चांद लग जाएंगे। मैं दामे दर में इकट्ठा रहता हूँ और मेरे ख्याल में यू नो इट, लेकिन इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, ये अगर ड्रामों में आनी शुरू हुई, मेरे ख्याल में अब इसको मुल्क से ख़त्म होना चाहिए, इंस्टेड कि हम इसको कंटिन्यू करें अगले एक सैलाब के लिए। तो आरज़ू ये है कि इस दफ़ा जो फंड रेजिंग हो वो इतनी हो कि इनको हम अपने पैरों पर खड़ा कर लें, और उम्मीद है कि हुजूर के होते हुए फंड रेजिंग होगी और इस कदर होगी इंशाअल्लाह कि बजाय इसके कि हम उनको इस बैगिंग की तरफ डालें, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दें। और यही इस मुल्क की बचत है कि हम लोगों को शऊर दें कि आपने अपने पैरों पर खड़ा होना है और सैलाब की सूरत हाल को सरकार के साथ खुद भी। लेकिन कुर्बानियां देने वालों को याद भी रखना चाहिए, कुर्बानियां देने वालों को याद भी। अच्छा जी, हम यहाँ पर अनाउंस करेंगे कि अल्लाह के फजलो करम से 100 करोड़ हम क्रॉस कर चुके हैं। 100 करोड़ का फिगर ये आप देख रहे हैं, पहला लैंडमार्क हमने क्रॉस किया है 100 करोड़। इमरान खान साहब की ज़ेर निगरानी ये जो इंटरनेशनल टेलीथॉन है, 100 करोड़ का फिगर क्रॉस कर चुके हैं इस वक्त हम, सिर्फ सवा घंटे में खान साहब। और इसमें फॉरेन फंडिंग कितनी है? अब ये ख्याल में आधी से ज्यादा फॉरेन फंडिंग। हमें शर्मिंदा करने वाली बात है। मैंने आज डोनेशन देनी थी, मेरी रकम इतनी छोटी है कि मैं चुप हो गया। जी वज़ीर आज़म साहब, इंट्रोड्यूस करवाना। जी हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी तनवीर इलियास साहब। जी
आपने इस पाकिस्तान के नया एरा में चैरिटीज़ के इस्तेमाल और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का जो आपने सिस्टम दिया, मैं ये समझता हूँ कि हमारे नेबर मुल्कों में भी, और ये जो असास प्रोग्राम इसकी एग्जांपल दी जा रही है इस रीजन के अंदर, इतना ट्रांसपेरेंट और इतना शफाफ सर। ऐसे है कि ये जो तूफ़ान और ये मैं ये समझता हूँ अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हुआ है, हमारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के इतने वसाइल नहीं होते। हमारे जो वज़ीर है SDMA के और हमारे कानून साज असम्बली के मेंबर है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आज़ाद कश्मीर की जो सबसे बड़ी NGO है उनको मैंने मोबिलाइज़ किया। तो बरतानिया में भी उनका ऑफिस है। हमने 25 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ हमने कैश और 15 करोड़ से ज़्यादा का हमने सामान बलूचिस्तान में भिजवाया। और ये हमारी टीम बलूचिस्तान में मौजूद थी। जो 4-5 दिन पहले बारिशें हुई, आज़ाद कश्मीर में अरबों रुपए का नुकसान हो गया और हमारे कई ब्रिज बह गए और जो हैवी RCC ब्रिज थे वो बुरी तरह अफेक्ट हुए। जो चीज़ सर आपके इस प्रोग्राम की वसातत से पाकिस्तानी अवाम के नॉलेज में, हम सब पाकिस्तानी हैं, आज वफाकी गवर्नमेंट का इजलास था, मैंने उसमें बाइकाट किया। हमारे साथ जो सलूक कर रहे हैं सौतेली माँ वाला, हमें परवेज़ इलाही साहब को देखे तो सिर्फ पंजाब की तरफ ही हम सोच सकते हैं कि हमदर्दी आएगी। वफाक में उन्होंने हमें पेंशन के पैसे, डिस्पैरिटी अलाउंस और इंक्रीमेंट के पैसे नहीं दिए। 2 महीने के बाद इस्माइल मिफ्ता साहब ने हमें लेटर भेजा कि आप अपने वसाइल से करें। 2 महीने से जिसको पेंशन नहीं मिली वो किधर जाए? हमने तो रिलीज़ कर दिया उन्हें अपने वसाइल के अंदर। ये चूँकि हमारी टीम जो बलूचिस्तान में थी वो पूरी टीमें लेके गई हुई थी, हमने सारी टीमें बलूचिस्तान मोबिलाइज़ की थी कि वहाँ ज़्यादा उनको मसाइल थे। आज वो वापस आए वहाँ से। कोई वफाकी गवर्नमेंट की हमें हेल्प नहीं है कि किस सर्वे करें, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया। हमारा नीलम मरून इलाके के अंदर क्लाउड ब्रेस्ट होते हैं, बहुत हैवी रेनफॉल, ये चूँकि मानसून का वैसे भी वहाँ नुकसान ज़्यादा होते हैं। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास ना इतनी मशीनरी है ना वसाइल हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट है, आपका ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर मैं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, आपके इस प्रोग्राम में मैं अपनी तरफ से अपनी जेब से 3 करोड़ रुपये का ऐलान भी करता हूँ। लेकिन हमारे मुल्क में सर ये जो चीज़ है ये हम सब ने एज ए बीइंग ए नेशन, वो पाकिस्तान के अंदर बाहर बैठे हूँ, पाकिस्तान के अंदर बैठे हूँ, इस तरह के चैलेंजेस से, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। आपने हमेशा काम पे जब भी इस तरह का सानिया हुआ आप आगे बढ़े, आपने लीड किया, आप रहनुमाई देते और लोगों को आपके ऊपर ईमान है और यकीन है कि आप इस कौम के चंदे को बेहतर कैसे इस्तेमाल करना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप इदारे बनाना जानते हैं, उनका इस्तेमाल जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपकी अपनी जदोजहद भी जो पूरी चल रही थी, आपने उसके होते हुए भी ये जो स्टेप उठाया है इसका अल्लाह ताला आपको अजर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है। यहाँ पे हम मुख्तसर सा एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चलें, मुश्किल हो या आसानी, जी टेलीथॉन में एक बार फिर खुश आमदीद। आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वो नंबर है 00924236361589। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। और अब हमारे साथ हैं अली जैदी कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल, अस्सलाम वालेकुम खान साहब एंड रेस्ट ऑफ एवरीबॉडी। मैं बस जल्दी 2 अनाउंसमेंट्स कर दूं। खान साहब, मेरी एक नीस है 9 साल की, शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। तो शी कॉल्ड मी, शी सेड कि अब मुझे मेरी तरफ से प्लीज़ 50,000 रुपये ले लें। कुछ अमेरिका से दोस्तों ने कमिटमेंट्स की हैं, वो अबाउट $20,000 हैं। तो आज के रेट से मेरे ख्याल में वो बन जाते हैं 50 लाख रुपए। और फ्रॉम माय फैमिली जी, जो मेरे बच्चों का सेविंग अकाउंट व्हाटएवर, मेरी तरफ से 1 मिलियन रुपये मैं भी इस कंट्रीब्यूशन में डाल रहा हूँ। सर मैंने निकलना है क्योंकि हमारी पैकिंग हो रही है और हमने सुबह ट्रक्स लेके हम जा रहे हैं अंदरूनी सिंध रिलीफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने ऑन योर बिहाफ। बहुत बहुत शुक्रिया अली, और प्लीज़ उनको तैयार कर दो। मैं भी सिंध आने की तैयारी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह चंद दिनों में आ रहा हूँ वहाँ। जी, और यहाँ पे हम आपको बताएं ARY न्यूज़ जिनकी नशरियात को तो बंद किया हुआ है, लेकिन उनके जो खिदमत का इंसानी जज्बे से सरशार उनके जो CEO हैं सलमान इकबाल, उन्होंने अनाउंस किया है, प्रेसिडेंट सलमान इकबाल साहब ने 3 करोड़ रुपया ARY फैमिली की तरफ से इस फंड के अंदर
सलमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं ये अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी हुकूमत ने जो आपकी नशरियात बंद की है ये सारी कौम के लिए ये एक लम्हा फ़िक्र है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आप वो समझते थे कि आप मेरा मौक़िफ़ पेश करते हैं, सिर्फ इसलिए आपको बंद किया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज मैं सारी कौम के सामने कि मैं इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से और सबसे ज़्यादा मैं इस फ्लड रिलीफ के अंदर काम करूँगा, लेकिन साथ साथ मैं उसी ज़ोर से अपनी जो हकीकी आज़ादी की मेरी तहरीक है उसी ज़ोर से उस पर काम करूँगा, सिर्फ इसलिए कि ये जो जुल्म होता है हमारे मुल्क में कि लोगों को जिन्होंने पकड़ के जो तशद्दुद किया है मेरे चीफ ऑफ स्टाफ उसके ऊपर शहबाज गिल के ऊपर, जो इन्होंने मीडिया के लोगों के ऊपर सिर्फ इसलिए सख्ती किया कि वो मुझे दिखाते हैं या जो वो समझते हैं कि प्रो तहरीक इंसाफ है, इस जुल्म के खिलाफ मैं खड़ा हूँगा। मेरी जो तहरीक है हकीकी आज़ादी की वो मेरे मुल्क के लिए, इस कौम को आज़ाद करने के लिए, ना वो रुकेगी और इंशाअल्लाह ना ये जो फ्लड के ऊपर मैं काम करूँगा ना वो रुकेगा। जी हमें कंट्रोल रूम से पता चला है साबिर शाकिर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एक तो आप सब लोगों का सबको सलाम और बहुत एक अच्छा नेक काम कर रहे हैं इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम। मैं बैठा हूँ जी इधर और मैं सिर्फ आजकल आपको पता है कि एग्जाइल में हूँ और रिस्क वेस्क भी बंद करने की कोशिश की जा रही है, बंद कर भी दिया गया, लेकिन फिर भी अगर काश मैं खुद होता, जैसे मैंने 2010 की कवरेज की फ्लड की और जैसे अक्टूबर 5 की मैंने फील्ड में जाके कवरेज की, रिपोर्टिंग की और लोगों को अपने पाकिस्तानी भाइयों को हेल्प आउट किया, तो मेरी अभी भी ख्वाहिश है कि मैं जैसे ही हालात बेहतर हो मैं वापस आऊँ और अपना काम संभालूँ और हर दुखी इन पाकिस्तानी के घर पहुँचूँ और इसको लुक आफ्टर करूँ। लेकिन बहरहाल इस वक्त हालात ऐसे ही हैं। तो एक तो आप सब लोगों को मुबारकबाद कि आप भी इन नामसाइद हालात के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और आगे आए हैं और एक नेक कॉज के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, अपने शहरियों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं भी अपील करूंगा कि मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो इसमें हिस्सा डालें और मैं अपनी तरफ से, हालात अच्छे नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से 500,000 अनाउंस कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। और मैं बाकी तमाम एंकर से भी ये कहता हूँ कि जो बरसरे रोज़गार हैं वो भी कम से कम एटलीस्ट 10% अपनी सैलरी का मंथ का वो दे दें, तो इससे भी हैंडसम अमाउंट जो है वो आ जाएगी। और जो ख़ास तौर पे जिनका रिस्क अभी तक बंद नहीं किया। और एक बात मैं ज़रूर इस मौका से फ़ायदा उठाऊँगा कि ये तो सैलाब मुतासरीन है, 4 करोड़ हमारी शहरी जो हैं मुतासर हो चुके हैं, लेकिन 4000 ख़ानदानों का जी हमने खुद मुआशी कत्ल किया हुआ है और उसमें मैं हुकूमत वक्त से और जिसने भी ये मुआशी कत्ल किया हुआ है ARY के 4000 ख़ानदानों का मैं उनसे अपील करता हूँ ये हाथ जोड़ के कि कम से कम ARY को ज़रूर खोलें, क्योंकि 4000 ख़ानदानों के चूल्हे बुझ रहे हैं। ये 1 तारीख को उनके चूल्हे बुझ जाएंगे, उनका कोई कसूर नहीं है। हम काउंटर नैरेटिव देते हैं और काउंटर नैरेटिव देते हैं, आप अपनी बात करें, हम अपनी बात करेंगे। एक स्पेस देनी चाहिए, मौका देना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। साबिर सुनो जी, कोई काउंटर नैरेटिव नहीं, राय हक पे खड़े हैं। जो इस वक्त दिखाता है कि इमरान खान की कवरेज दे रहा है, टेलीफोन कॉल कर करके कहते हैं कि इमरान खान को आपने कवरेज नहीं देनी, टेलीफोन मीडिया हाउसेस को थ्रेटन करते हैं, सहाफ़ियों को धमकियां दी जाती हैं कि आपने इमरान खान की कवरेज नहीं करनी। ये कोई ऑल्टरनेटिव, ये मुल्क के ऊपर एक फैशिस्ट रजीम कायम की हुई है। मैं फिर इससे कह रहा हूँ, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपने खड़े रहना अपने मौक़िफ़ पे, किसी प्रेशर में नहीं आना। जो आदमी सच के लिए और हक के लिए स्टैंड नहीं लेता, वो सारी कौम देख रही है आज कि कौन किधर खड़ा है, सारी कौम देख रही है। और ये है वक्त हमारा सारी कौम को इकट्ठा करने का। मैं सारी कौम को कहता हूं कि हम मिलकर लड़ेंगे इसके लिए, लेकिन सारी कौम ने मिलकर लड़ना है ये हकीकी आज़ादी के लिए। नहीं तो ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, चोरों पर मुसल्लत कर दिया और कह जी अब इनको आप एक्सेप्ट कर लें। ये कभी मैं कभी करूंगा, ना मैं चाहता हूं मेरी कौम कभी करे। और इसकी आड़ ना लें कि सैलाब आए हुए हैं तो इसलिए हम चुप करके इनकी गुलामी कबूल कर लें, ये नहीं होने लगा।
बिल्कुल सही बात है। मैं इंशाल्लाह जी चलो यही हमारे हम साथ पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं जी। जी साबिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉलर्स हैं, अब बैक टू बैक कॉल्स की तरफ हम जाएंगे। जी हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, महबूब मलिक रॉयल नवाब से बोल रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम महमूद, क्या हाल है भाई? मेहरबानी। अच्छा जी, आज इस मुश्किल घड़ी में हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बहुत मुश्किल में हैं, तो मैं आज रॉयल नवाब की तरफ से 100,000 पाउंड की डोनेशन आपको खान साहब पेश करता हूँ, तो अल्लाह कबूल करे। और खान साहब आपकी चैरिटी में मैं पहले भी आपके साथ थे और इंशाअल्लाह ताला आगे भी मरते दम तक आपका साथ देंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को परेशानियों से निजात दिलाए और अल्लाह आपको और हिम्मत दे अपनी कौम की खिदमत करने की। महबूब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि महबूब वो पाकिस्तानी है जिनके ऊपर मुझे जिन पे ख़ास फ़ख्र है। यहाँ से जाते हैं मुल्क पाकिस्तान से, वहाँ 16-16 घंटे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर अपनी छोटी बिजनेस फिर उसको बड़ी करते हैं, फिर वो बड़ा महबूब का माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है। और मैंने तो 30 साल में इंग्लैंड में देखा, शुरू में थोड़े थोड़े से करके इन्होंने इतना कामयाब किया और हमेशा मुल्क की दर्द रखते हैं, हमेशा पैसे भेजते हैं, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे वो नमल यूनिवर्सिटी के लिए, तहरीक इंसाफ उसको भी ये समझते हैं कि एक मुल्क का कॉज है। मैं आज इस तरह के पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ जिनको ये फॉरेन फंडिंग कहते हैं। ये इस तरह के पाकिस्तानी हैं जो कि मुल्क का सोचते हैं और हर मुल्क के कॉज के लिए पैसा देते हैं। मैं वो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अगले कॉलर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, कौन साहब? मैं जावेद शेख बोल रहा हूँ जी। जी जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। जावेद वालेकुम सलाम। हाँ साहब, कैसे मिजाज आपके? जावेद आप भी वैसे हमेशा हमारे साथ शिरकत करते हैं जब भी हम कौम के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। जी हाँ, हमेशा करता हूँ और अभी भी इंशाल्लाह मैं शाना बशाना खड़ा हूँ आप लोगों के। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपने मुल्क के लिए करें। खान साहब इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने चाहा तो अल्लाह मियाँ बहुत करम करेगा, बहुत पैसे इकट्ठे करूँगा अभी इन दिनों में इंशाल्लाह। और आप और फिर वो बहराम सब्जवारी भी, वो हमेशा आप दोनों इकट्ठे होते हैं। बिरोज सॉरी बिरोज सब्जवारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ साहब, गॉड ब्लेस यू। अनवर मकसूद साहब का एक पैगाम भी है, वो हम थोड़ी देर में सुनते हैं, लेकिन यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अभी तकरीबन हमें 1.5 घंटा हुआ है 200 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं फॉरेन फंडिंग माशाल्लाह। वैसे मैं आज 150 अच्छा करेक्शन कंट्रोल 150 करोड़। मैं सिर्फ आज फिर सारी कौम को, देखें मुश्किल वक्त है, इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ा इम्तिहान में डाला अल्लाह ने हमें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पैसा मैंने इस कौम से इकट्ठा किया, शायद ही दुनिया में कोई इस तरह की खुले दिल की कौम है मुखैर। यानी जब मुल्क में ज़रूरत पड़ती है किसी को, जितना पैसा पाकिस्तान में लोग अल्लाह की राह में देते हैं, पता नहीं और कोई मुल्क है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन आप सिर्फ मैं शौकत खानम का आपको सिर्फ सारी कौम को बता दूं कि 9 अरब रुपया हर साल गरीब मरीजों के, कैंसर के मरीजों के इलाज पे हर साल 9 अरब रुपया ये कौम इकट्ठा करके देती है। कहीं दुनिया के अंदर एक प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल नहीं जो 75% मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। वो सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है क्योंकि इतने खुले दिल के लोग हैं और हर साल पिछले साल से ज्यादा पैसा देते हैं। जी अमेरिका से भी कॉल बताया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा? जी मैं डॉक्टर कौसर जब्बार बात कर रही हूँ मिशिगन से। जी जी। खान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत सलाम और बस लंबी बात नहीं करूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि आपको और आपकी टीम के लिए बहुत दुआएं। खुदा आपको और पाकिस्तान को इस इम्तिहान में कामयाब करे और महफूज रखे। आमीन। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से 3.5 मिलियन रुपीज है और अभी हम इस पर नहीं खत्म करेंगे, इंशाल्लाह हम आगे भी आपके साथ खड़े हैं। I am in touch with Dr. Nasrullah in Dallas, so my contact details are also here. So please, इंशाल्लाह ताला हमने आगे भी आपकी बहुत हेल्प करनी है, पाकिस्तान की हेल्प करनी है और शौकत खानम कराची की बनाना है।
और बाकी अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, महफूज रखे, बहुत दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कासिम सूरी हमारे साथ हैं बलूचिस्तान से, वहाँ के हवाले से हमें ज़रा सा बताएंगे। जी कासिम सूरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि पूरे पाकिस्तान के लिए हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और बलूचिस्तान की जो एक उम्मीद है वो इमरान खान साहब से है, और पूरे पाकिस्तान को मुतहद किया हुआ है उन्होंने। पहली दफ़ा इस तरह का शदीद सैलाब आया बलूचिस्तान में, 26 अजला हमारे मुतासर हो गए हैं, और ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है तमाम दूसरे सूबों से। रेलवे ट्रैक भी हमारा जो है वो टूट गया है, पुल तबाह हो गए हैं, और बलूचिस्तान 44% है रकबे का पाकिस्तान का, तो दूर दूर तक फैला हुआ है। 3.5 साल की हुकूमत में इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा 64 सालों में, अगर किसी ने 74 सालों में बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा अगर नवाजा तो वो इमरान खान साहब के दौर में था। सदरन बलूचिस्तान को 600 अरब रुपए का पैकेज दिया। हमारा जो है वो सीपैक का रोड उन्होंने शुरू किया, जोब से लेकर कोयटा तक, और चमन से कोयटा और कोयटा से कराची तक का दोराहा रोड भी मंजूर किया। तो ये सब कामों के बावजूद अब ये जो अल्लाह ताला की तरफ से आफत आई है, इसमें जो है तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जो है वो मवेशी जो है, आपको पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा माल मवेशी पे लोग जिंदगी गुजारते हैं, वो सैलाब की नजर हो चुके हैं। 250 के करीब जो है वो कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। 65,000 के करीब लोगों के घर जो है वो सैलाब बहा के ले गया है। तो इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह इमरान खान साहब सामने आए हैं, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह उनका करैक्टर रहा है, हमेशा इंसाफ के नाम से जमात बनाई है, तो पूरे बलूचिस्तान के लोगों को ये उम्मीद है कि इमरान खान साहब इस फंड में भी बहुत शुक्रिया इंसाफ करेंगे, और इस हमारे जी बहुत बहुत शुक्रिया कासिम सूरी साहब, आपने अपडेट किया। हमारे साथ हैं मोहसिन लगारी साहब लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत बस ब्रीफली आप बता दीजिएगा पंजाब के हवाले से, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि कॉलर्स भी हमारे साथ लाइन पर। जी हमारा इस वक्त जी जो है एक जो टफ वाला टाइम था, जिसमें हमें हमारे हिल टॉरेंट से हमारे पानी आ रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि बारिशें जो हैं कैचमेंट एरियाज़ में कम हो गई हैं। लेकिन हमारे लिए दूसरा जो भी क्राइसिस ब्रू कर रहा है वो है कि रिवर इंडस जो है वो राइज़ कर रहा है, क्योंकि पीछे से दरियाए काबुल से जो आ रहा है 3 लाख का एक रेला, उससे जब इसमें ऐड होगा तो द रिवराइन एरियाज़ जो हैं वो हमारे अंडर थ्रेट आ जाएंगे। बखर में है, मुजफ्फरगढ़ में है, लइये में है, देरा गाजी खान, राजनपुर, जो भी दरिया सिंध के साथ साथ के इलाके हैं नीचे जो हैं, अब उनके अंदर एक हमारा क्राइसिस जो है ब्रू कर रहा है। इस वक्त भी तौसा बैराज पे रिवर इंडस जो है वो हाई फ्लड में है, तो उसको मैनेज कर रहे हैं हम। हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो दरिया के साथ वाले जो सारे मोहसिन साहब एक सेकेंड है, उनके ऊपर उन्होंने काम किया है, और होपफुली एक दरिया जो है इधर से पानी आराम से हमारा यहाँ से गुजर जाएगा और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये मोहसिन साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। एक मोहसिन देखो, मुझे मोहसिन से मैंने सिर्फ चेक करना था कि आपका इसको डैमेज कितना है, डीजी खान और ये जो राजनपुर एरिया से डैमेज हम पता चलवाना चाहते हैं, क्या हुआ? सर डैमेज हमारे जो है यूनियन काउंसिल्स 124 यूनियन काउंसिल्स, 522 मवाजियात हैं सर, अबाउट 1.3 मिलियन एकर्स। जी और सर इसमें पॉपुलेशन भी है हमारी तकरीबन सर 500,000 की है, और अबाउट 30,000 हाउसेज हैव बीन डैमेज्ड। और जो सबसे ज़्यादा से जिस चीज़ पे हमें अभी हिसाब किताब नहीं हुआ वो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो गया सर। द रोड्स हैव बीन वॉश्ड अवे, द स्कूल्स हैव बीन वॉश्ड अवे, जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट थे वो हमारे सर बह गए हैं पानी में, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो बह गए हैं। तो हमें अभी जो पहला फोकस होगा सर, अभी जब ये पानी जब रिसीड करेगा कि हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बिल्ड करना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक चीज थैंक यू मोहसिन। देखिए सब अपनी देखने वालों के लिए देखें, ये जब जितना भी आप सुनेंगे बलूचिस्तान का, अभी सिंध का हमें पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है क्योंकि सिंध में सबसे ज़्यादा इस वक्त लोग मुतासर हैं, और ये पंजाब के डीजी खान, राजनपुर, और अभी ऊपर आपने सुना स्वात और
چترال گلگت بلتستان. یہ جو اب اگلا مرحلہ ہے یہ صرف قوم اس کا مقابلہ کر سکتی ہے, کیونکہ جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہے اور یہ جو سارا اسیس کریں گے یہ گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی ملک, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ باہر سے, میرے نہیں خیال میں باہر سے زیادہ پیسے ملیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری قوم کو موبلائز ہو کے پہلے تو اب یہ اسیس ہی کر رہے ہیں کہ کتنا ڈیمیج ہوا, انفراسٹرکچر کتنا ڈیمیج ہوا, ابھی تو اس کی اسیسمنٹ آ رہی ہے, پھر ریہیبلیٹیشن میں کتنے گھر بنانے ہیں. لیکن انشاءاللہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم ساری قوم موبلائز ہو جائے, اور اس کے باوجود کہ میں حقیقی آزادی کی تحریک بھرپور طریقے سے چلا رہا ہوں ساتھ, اس کے باوجود ہم سینٹر سے بھی بات کریں گے, ہم سندھ حکومت سے بھی بات کریں گے, بلوچستان تو خیر ہم کریں گے کیونکہ وہ کولیشن گورنمنٹ ہے, ان دو حکومتوں سے ہم بات کر کے, اس کے باوجود کہ میرے اوپر انہوں نے کوئی 18 FIRs کی ہوئی اور مجھے دہشت گرد بنا دیا ہے, اس سب کے باوجود ہم پورے مل کے ان سے بھی کوآرڈینیٹ کریں گے کہ ہم ساری قوم مل کے اس کا مقابلہ کرے, یہ جو آگے بہت بڑا اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہوا ہے. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں اور شاہد ہیں کینیڈا سے. شاہد صاحب کینیڈا سے, انہوں نے 1 ملین پاکستانی روپے جو ہیں وہ ڈونیٹ کرنے کا اعلان کیا. 1 ملین پاکستانی. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام نہیں لینا, میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں, میں نے اپنا نام نہیں لینا. میں تو خان صاحب کا عاشق ہوں, میں نے اس لیے 1 ملین دیا ہے. میں نے خان صاحب کو دیا اور اسلام کے لیے دیا, مجھے اپنا نام نہیں بتانا, میں نے صرف اللہ واسطے دیا اور خان صاحب کے سپورٹ کیا. یہ اور جی بڑا جذبہ. کتنا اماؤنٹ ہے جی؟ 1 ملین. 1 بہت شکریہ. 1 ملین روپے. بہت شکریہ. علی زیدی کے ایک دوست ہیں, انہوں نے $50,000 جو ہیں وہ دینے کا اعلان کیا ہے. جی تو حمزہ علی عباسی آپ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حمزہ بڑے عرصے بعد. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی دیکھ رہے ہیں آپ قوم کا جذبہ. بالکل جی, یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ قسم کی تباہی آئی ہے گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہوا ہے, اور اس موقع پہ آئی تھنک پاکستان میں کیا دنیا میں بڑے کم لوگ ہیں جن کو عوام کا اس لیول کا ٹرسٹ حاصل ہو جو عمران بھائی آپ کو ہے. جب ریسورسز دینے کی بات آتی ہے کسی بھی اچھے مقصد کے لیے, تو آئی تھنک خان صاحب کو لوگ ایسے ٹرسٹ کرتے ہیں جیسے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کرتے ہوں گے. سو بڑا ضروری تھا کہ آپ اس موقع پہ یہ ایکٹیویٹی کرتے. اللہ آپ کو اجر دے اس چیز کا, اور لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یونائٹ ہوں اس مقصد کے لیے, ہو بھی رہے ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 1.5 ارب سے زیادہ کٹھا جو ہے وہ ہو چکا ہے ماشاء اللہ. 150 کروڑ. ہاں, تو اور بھی لوگ اس کا اور بھی لوگ اس کا حصہ بنے. اور میں گزارش یہ کروں گا خان صاحب آپ سے کہ کرائم تو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی شاید بڑی بھاری اکثریت سے حکومت آنے والی ہے اگلے کچھ ٹائم کے اندر, تو اس کا لانگ ٹرم بھی آپ کچھ کیجیے. نہ کہیں کیونکہ پھر اور FIR کٹ جائیں گے, وہ ڈسکوالیفائی پھر کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں جی, لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ السلام علیکم. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اعجاز حسین بات کر رہا ہوں, سین اینٹونیو ٹیکسس, USA سے. جی 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 بولیے گا. آواز نہیں ٹھیک آ رہی. میں $3,000 ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں PTI سین اینٹونیو کی طرف سے. $3,000. جی شکریہ. ہماری جو ویب سائٹ ہے فلڈ ریلیف 2022 punjab.gov.pk, یہ اسکرین پر بھی لگا دیں جی ویب سائٹ. اب تک اس پہ خان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لانچ ہوئی ہے, تو $3.5 لاکھ جو ہیں وہ آ چکے ہیں. $3,50,000. موہت پیزادہ صاحب ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن. تھینک یو فیصل. تھینک یو خان صاحب. فرسٹ آف آل تو میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا اعلان کیا کہ آپ نے کہا کہ اب سندھ کے ساتھ بھی
और सेंटर के साथ भी, क्योंकि तलखियाँ इतनी हो चुकी हैं आपकी जमात पे और इन सब जमातों के दरमियान। आप दहशतगर्द भी हो चुके हैं, 16 FIRs आपके खिलाफ हो चुकी हैं, कंटेम्प्ट आपके खिलाफ है, दफ़ा 144 ख़त्म करने की आपके खिलाफ है, 26 तारीख के 10 केसेस वो थे आपके खिलाफ। और ऊपर से इसने कह दे 2/3 अक्सरियत मिलेगी, वो तो सर हिस्ट्री और आ जाए, वो तो हिस्ट्री बताती है। FIR का नाम लेते कॉलर आ जाते हैं। अभी आपने फॉरेन फंडिंग एक और रेस कर दी यहाँ पे 1.5-2 अरब रुपए। FIR का नाम ना ले, कॉलर और फॉरेन फंडिंग आ गई, कॉलर और ज्यादा कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन फंडिंग जारी है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए परवेज भाई साहब, आप खामोश बैठे हैं काफ़ी देर से, तो देख रहे कौम का जज्बा। माशाल्लाह बहुत जज्बा है। और अभी लगारी साहब बात कर रहे थे तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा, तो आज ही हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, तो उसमें सारी अभी हमारे लोग असेसमेंट कर रहे हैं कि जो जो नुकसान हुए हैं। और ये बाकी बात सही है कि जो मकानात हैं ना, उस हवाले से जी हमारा एक प्लान है। बुध को हमारी मीटिंग है, बाहर से लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं जी हम घर बना के दे देंगे, 3-3 कमरे का घर देंगे और पूरी फैसिलिटीज़ अंदर होंगी, तो वो इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको? हमारे साथ है कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। शान है लाहौर से जी। शान चाहत पाकिस्तान के सुपरस्टार और जज्बा है हुब्बुल वतनी से सरशार। शान अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, फैसल कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब भी मुल्क किसी भी हालात में मुब्तला होता है तो सबसे पहले आप निकलते हैं, चाहे वो कॉज हो शौकत खानम का, ज़लज़ला ज़दगान का, पिछले जो सैलाब आए उसमें भी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इस दफ़ा भी तमाम तर मुश्किलात आवाम जो है वो सारी मुश्किलात आपकी समझती है। आप जिन मुश्किलात में घिरे हैं सारी आवाम समझती है, लेकिन उसके बावजूद आज आपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए फिर पाकिस्तान की मदद करने आप निकले हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपको इस कौम से उम्मीद है, इसी तरह इस कौम को भी आपसे बहुत सी उम्मीदें। खान साहब, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये टास्क लिया, मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में। हमेशा जब भी आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की भी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो शौकत खानम की फ़ंड रेजिंग हो या सैलाब ज़दगान के लिए हो या ज़लज़ला ज़दगान के लिए हो, हमेशा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आपके साथ साथ खड़ी रही और हमेशा खड़ी रहेगी पाकिस्तान के लिए। मैं खान साहब थोड़ा सा आपके साथ एक्सटेंडेड, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब परवेज़ इलाही साहब भी बैठे हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस कार खैर को, बिकॉज़ ये 1 या 2 दिन का हंगामी सूरत हाल नहीं है, ये काफ़ी लंबा चलेगा सिलसिला। 1 साल 2 साल तक हमें इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बहुत से फंड्स चाहिए। तो मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर एक ऐसी पॉलिसी भी बनाई जाए, जहाँ जहाँ पे PTI की हुकूमत है वहाँ पे ज़रूर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि कल्चर के थ्रू हम फंड रेजिंग कैसे कर सकते हैं। आपके जो कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशंस हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, ये सारे जो हैं इनका जो फ्रंट है जहाँ पे ये लड़ सकते हैं और जहाँ पे ये आवाम के लिए वो सब इकट्ठा कर सकते हैं जो ये हम अपने लिए कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी ज़रूर पॉलिसी ड्राइव की जाए। एड मिलना और जिन लोगों को, जो लोग इस वक्त बाहर से पाकिस्तानी जो पैसा भेज रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद हमें और वेन्यूज़ देखने होंगे जहाँ से हम ज़्यादा फंड्स इकट्ठे कर सकें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चल सकें। जैसे मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, परवेज़ इलाही साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ऐसी पॉलिसी ड्राइव की जाए जिसमें हम कल्चर के थ्रू आपको फंड रेजिंग करके दें, बल्कि पाकिस्तानी जो हैं फ़नकार जो हैं वो लंदन जाएं, GCC जाएं, ह्यूस्टन जाएं, अमेरिका जाएं, जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ से उनके साथ मिल के वहाँ पे शोज़ किए जाएं। हम अपने पाकिस्तानी भाई जो हमारे बाहर बैठे हैं उनके साथ मिल के फंड रेजिंग को एक नए लेवल तक लेके जाएं। जी बहुत ही बड़ापन है कि आप हमेशा की तरह पाकिस्तान। जी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है आपका शान।
اور بالکل آپ نے ٹھیکا، معاشرے کا ہر طبقہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ ہے ایک کالر. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رضا جعفر بول رہا ہوں دبئی سے. جی. فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ دی ایفرٹ کہ جی آپ لوگوں نے آلریڈی جو ہے وہ 150 کروڑ سے اوپر جمع کری ہے. اس وقت جو آفت آئی ہوئی ہے اس کے لیے جتنا بھی کیا جائے کم ہے. اور عمران جو آپ کر رہے ہیں آئی تھنک دیر از سم تھنگ دیٹ از بیڈلی نیڈیڈ، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ضرورت پڑتی رہے گی. اینڈ آئی ایم گلیڈ اینڈ آئی تھنک آور نیشن از لکی ٹو ہیو اے لیڈر لائک یو. جی بہت بہت شکریہ. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری. جی حمزہ. ہاں فیصل بھائی، میں جو پوائنٹ میں کہہ رہا تھا کہ خان صاحب آپ کی انشاءاللہ لگ تو ایسے رہا ہے کہ حکومت آئے گی، سو اس کا لانگ ٹرم کچھ سلوشن ہونا چاہیے، کیونکہ جو ابھی فلڈز آئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ گلوبلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بار بار آئیں گے، یہ 5 سال بعد بھی آئیں گے، تو اس کا کوئی لانگ ٹرم سلوشن چاہے واٹر ریزروائرز ہوں یا کوئی اور چیز. دیکھیں اس کے 3 لانگ ٹرم سلوشنز ہیں. نمبر 1 کہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ دنیا میں اب فینومینا ہے، یا آگے لگ رہی ہیں، یا اب یورپ کے اندر کبھی بھی ایسی خوشحالی نہیں آئی، اور پھر سائبیریا میں کبھی آگ نہیں لگی. سو ایک تو وہ ہے نا کلائمیٹ چینج. اس کے لیے تو پاکستان میں ہم نے جو اپنے جنگل تباہ کیے ہیں، اور جو ہم نے کوئی کسی نے انوائرمنٹ کی پرواہ نہیں کی، تو وہ جو ہمارا 10 بلین ٹری سونامی، اور پھر اس کے علاوہ بھی اور 2-3 ہمارے انیشیٹیوز ہیں. ایک تو وہ چلتا رہے گا نا، درخت اگانا اور اپنی انوائرمنٹ کو بچانا. سیکنڈلی ڈیمز، کیونکہ یہ جب پانی آتا ہے یہی ہمارا اثاثہ بن جاتا ہے، یہی نعمت بن جاتی ہے، وہ تباہی کا سبب بن جاتا ہے. کیونکہ ہم نے کوئی ڈیمز 50 سال میں کوئی ڈیمز نہیں بنائی. چائنا میں اسی دور میں 5000 بڑے ڈیم بنے، ہمارے صرف 2 ہیں ابھی، اور 2 ہم داسو اور بادشاہ اب ہم بنا رہے ہیں، جو کہ 3-4-5 سال میں بنیں گے. سو ڈیمز بنانے پڑیں گے. اور خاص طور پہ یہ جو تباہی آئی ہے یہ سلیمان کو سے آئی ہے، یہ مغرب سے آئی ہے، یہ جو سارا ڈی جی خان اور یہ سب، اس کے لیے ساری جگہ ڈیمز چاہیے، اور وہاں وہ ہے بھی بڑا خشک علاقہ. سو ایک وہ ہو گیا. اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ بیسک گورننس ہے بند بنانے. اب کوئٹہ وہ نوشہرہ بچ گیا بیکاز انہوں نے پچھلے 4-5 سال میں وہ بند بنا دیے، نہیں تو نوشہرہ ڈوب گیا تھا پچھلی باری 2010 میں. اور پھر یہ تونسا شہر بچ گیا کیونکہ انہوں نے بند بنا لیا تھا، تو پورا کا شہر بچ گیا، نہیں تو وہ بھی بہ گیا تھا. تو اس لیے سندھ کے اندر وہ جو ڈرینز ہیں لیفٹ اور رائٹ انڈس کے جو لیفٹ اور رائٹ ہینڈ، وہ جو سندھ کے قریب سندھ کے اندر درائے سندھ کے ساتھ جو ڈرین کرتی ہے، جو ڈرین کرتی ہیں پانی کو، وہ نہیں ہوئی. تو وہ پانی وہ جب پانی اگر ڈرین نہیں ہوگا وہ سارا، اور فلیٹ ہے وہ پھیل جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا پڑے گا. کراچی کے اندر تباہی آ جاتی ہے، وہ نالے بند ہو جاتے ہیں ان کے اندر غلط. سو گورننس بھی ساتھ جائے گی، ساتھ اس کے کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی کام، ڈیمز جو پانی روکیں گی، سیلاب. اللہ کی آفت جب آتی ہے تو کوئی کتنا اسے کم کر سکتے ہیں، اس کا امپیکٹ کم ہو سکتا ہے، اور وہ یہ جو میں نے آپ کو میجرز بتائے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجیے گا. میں ڈاکٹر راہیلہ بات کر رہی ہوں ڈالس ٹیکسس سے. جی سب کو السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار پٹنگ دس امیزنگ ایفرٹ ان پلیس. یو گائز آر آور ہیروز. میں اپنی طرف سے $10,000 ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں، اور خان صاحب کو پیغام یہ دینا چاہتی ہوں کہ اللہ آپ کا حوصلہ اور ہمت بلند رکھے. آپ کے حوصلے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. بہت لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں، میرا نہیں ہے اتنا بڑا. اگر آپ کو پریشان دیکھتے ہیں تو ہم سب پریشان ہوتے ہیں، ہمارا دن اچھا نہیں گزرتا. اس دن آپ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں اور ان کنٹرول نظر آتے ہیں، جو کہ آپ اکثر ہوتے ہی ہیں، تو ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے سر. So bravo to you all and the best of luck. بہت شکریہ. لیکن مجھے نہیں پتا تھا میں پریشان نظر آ رہا تھا آپ کو. ابھی تک تو میں پریشان نہیں ہوا. ابھی تک تو اگلے پریشان ہو کے میرے اوپر FIR پہ FIR کاٹے جا رہے ہیں اور دہشت گرد بنا دیا ہے. پریشان ابھی تک میں نہیں ہوں. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر کاشف انصاری ہیوسٹن ٹیکساس سے. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بتا دوں صلاح الدین ایوبی جو پروجیکٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحب اس کو پورا کر رہے ہیں ٹرکی کے ساتھ. ایمرے بے جو ڈائریکٹر ہیں یونس ایمرے کے اور باقی ان کے ساتھ مل کے. جی ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب.
جی بہت شکریہ خان صاحب, السلام علیکم. سب سے پہلے میری طرف سے 50 لاکھ روپے کا ڈونیشن ہے, یہ پہلے فیز کا ہے, اور اگلے فیز میں جو مکانوں کی کاسٹ آئے گی اس میں سے پہلے 100 مکان ہماری طرف سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کو بھی گن لیجیے. اور ایک چھوٹی سی گزارش تھی خان صاحب, وہ یہ گزارش تھی کہ آپ کا بہت اچھا تعلق رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ, اور الخدمت کی جو گراؤنڈ کی ٹیم ہے پوری پاکستان میں, اس کی مثال یقیناً بہت اچھی مثال ہے اور بہت زبردست ٹیم ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم الخدمت کے ساتھ مل کے ریلیف ایفرٹس کو لے کے چلیں یا نہیں؟ میں بالکل, پہلے تو یہ جو صلاح الدین ایوبی ہے یہ زبردست کام کر رہے ہیں آپ, کیونکہ میں چاہتا ہوں ہماری آنے والی جنریشن کو, ہماری جو یوتھ ہے اس کو پتہ تو چلے کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے. اور یہ بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں, کیونکہ ترک اس میں کافی آگے نکل گئے ہیں, انہوں نے زبردست پروگرامز بنائے یہ جو عثمانیہ سلطنت کے اوپر. دوسری چیز, جماعت اسلامی کی بالکل خدمت فاؤنڈیشن نے زبردست کام کیا, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ سارے جتنے بھی جو بھی اچھے کام کریں ان کو سب کو کوآرڈینیٹ کریں. دیکھیں یہ ہے بہت بڑا اس وقت چیلنج, بہت بڑا ہے پاکستان کے لیے, تو یہ ضروری ہوگا کہ ساری قوم اس کو مل کے اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو. تو ہم ایک کنٹرول روم بنا رہے ہیں جو کہ باقاعدہ لوگوں کو بتائے گا, ویب سائٹ کے اوپر آ جائے گا کہ اگر کوئی بھی کچھ مدد کرنا چاہتا ہے, مثلا الخدمت, تو ہم بتا دیں گے کہ یہ علاقے ہیں جدھر آپ یہ ضروریات ہیں, تاکہ یعنی سارا ملک کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ جب وہ زلزلہ آیا اور میں نکلا مدد کرنے کے لیے, تو ساری دنیا ہی بالا کوٹ پہنچ گئی, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, تو جو سنتا تھا وہ ایک ہی جگہ پہنچ جاتا تھا. تو وہاں 3 میل کا کیوں لگا ہوا تھا, ٹریفک جام ہوا تھا, اور باقی علاقوں میں لوگ کوئی تھے ہی نہیں, اور وہاں بیچارے بھوکے مر رہے تھے. تو اس لیے ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ساروں کو کمبائن کریں گے اور ڈائریکٹ کریں گے کہ اگر کوئی بھی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ کدھر جائے. 1 ارب 74 کروڑ پہ پہنچ چکے ہیں جی. 1 ارب 74 کروڑ کا مطلب 174 کروڑ. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ انٹرنیشنل ٹیلی تھون جاری. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم فیصل, آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے جی. بات کیجیے گا خان صاحب سے. جی خان صاحب, آصف خان بول رہا ہوں ہیوسٹن سے. 2 چیزیں خان صاحب, ایک تو سجاد برقی بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہیوسٹن کمیونٹی کی طرف سے $100,000 جو کہ 20 ملین بنتا ہے. لیکن خان صاحب جو دوسری اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ایک بہت اچھے دوست ہیں جو آپ کے سب سے اچھے یہاں پر دوست ہیں, انہوں نے بولا ہے کہ ٹوٹل ریہیبلیٹیشن پروسیس میں بھی فیصل بتا رہا ہے کہ 1 ارب 74 کروڑ ہو چکا ہوا ہے. تو آپ کے ان دوست نے اناؤنس کیا کہ وہ ٹوٹل ریہیبلیٹیشن پروسیس میں 2 بلین روپیز دیں گے اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے. تو یہ دس ول بی $10 ملین, وہ آپ کے ٹوٹل ریہیبلیٹیشن پروسیس میں یہ اناؤنس $10 ملین. لیکن انہوں نے بولا ہے وہ ان کا نام نہیں اناؤنس کریں, بٹ یو نو ہم ویل. تھینک یو خان صاحب. بہت بہت شکریہ عاطف, اور ان کا شکریہ ادا کرنا اس فورن فنڈنگ کا. شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انجم اسد بات کر رہی ہوں, وائف آف عدنان اسد فرام فلوریڈا, USA. جی 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 جی. وائف آف عدنان اسد. اچھا اچھا. جی جی مسز عدنان اسد. جی میرا یہ میں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, عدنان اسد میرا کلاس فیل ہو رہا ہے HSN میں 10 سال. جی 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 بالکل. ہاں ماشاء اللہ. So I want to donate $100,000 for this flood relief. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جی. $1,00,000 کا مطلب آگے 22 ہاں 2.5 کروڑ. ہاں عدنان اسد بھی, تو اس کو آپ کو میں بتا دوں, ویسے FIA نے اس کو فورن فنڈنگ کے اوپر بھی بلا لیا عدنان اسد کو. ایک اور کیس ہو گیا. سارے محب وطنوں کو بلایا جا رہا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. اب ویسے جیسے جیسے کہہ رہے ہیں لوگ اور بڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی. ماشاء اللہ. جی تم پھر سے 2/3 نہ کہہ دینا, پھر سے وہ آ جائے گی کوئی ایک آدھ اور, کسی کو FIA کے نوٹس آ جائے گی. السلام علیکم. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. بھائی جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی. کالر ہمارے ساتھ.
आप अपने टीवी की आवाज़ आहिस्ता कीजिएगा, क्योंकि आप हमें वहाँ से सुन रहे हैं, आपको मुश्किल होगी। आप डायरेक्ट हमें फ़ोन से सुनिए। मज़ीद कॉलर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं। खलील रहमान कंवर साहब, काफ़ी अरसे से आप लिख रहे हैं और क्या कमाल का लिख रहे हैं। जो भी लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, फिल्म लिखते हैं, वो सुपर हिट हो जाती है। बड़ी ताकत है आपके कलम के अंदर। सबसे पहले तो मैं खास है वो कहूँगा कि वो 2/3 गलत कहता है। अगर हमने सिंध में बेहतर काम कर लिया तो we'll go for 3/4 इंशाल्लाह, and that is to be done inshallah. We expect and we believe that this time we will not be seeing any such phase where we see a hung parliament. Hung parliament means we are not going to do anything. We are made not to do anything. तो अल्लाह के फजल से हम सब की दुआएं हैं। एंड कभी आप तो बाहर निकल के लोगों को देख रहे हैं और हम भी मिलते हैं उनको। जो सेंटिमेंट है इस वक्त वो तो दैट विल मेक इट हैपन इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि जल्दी इलेक्शन हो। और वो हमारे ड्रामे की इस्तिलाह में कहते हैं मिसकास्टिंग, तो दिस टाइम मिसकास्टिंग हुई और शुक्र है कि एक एक्टर तो हमने चेंज कर लिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वी आर प्रेइंग फॉर इट अल्लाह के फजल से। जी नहीं, एक्टर्स बड़े चेंज होंगे इस बार इंशाल्लाह। 2 इम्पोर्टेंट एक्टर तो बहुत जरूरी थे ना। देखिए मिसकास्टिंग वाली बात बड़ी दिलचस्प। हाँ, बहुत अच्छी वाकई मिसकास्ट। ये पॉलिटिक्स में अच्छा इन्होंने फ्रेज इस्तेमाल किया है। सर एक डोनेशन है। मेरी वालदा का मैसेज आया कि मेरी वालदा की तरफ से, बहन की तरफ से, बीवी की तरफ से 10 लाख रुपए जो है वो इसमें ऐड कर दें। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको शुक्रिया हमारा थैंक करना थैंक यू कौम की तरफ से। एक और साहब हैं जो कहते हैं मैं नाम नहीं बताता, लेकिन मेरी तरफ से 5 मिलियन रुपए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। कॉलर्स हमारे साथ आ रहे हैं। समी इब्राहिम साहब, आपका भी शुक्रिया, आपकी काफ़ी देर से। इस वक्त DG 1122 हमारे साथ हैं लाहौर से, डॉक्टर रिजवान जी। डॉक्टर साहब अपडेट देंगे? जी जी डॉक्टर साहब अपडेट दीजिएगा। 1122 जबरदस्त काम जी। अगर आप देखें कि एक मंसूबा शुरू हुआ आई थिंक 2004 में जब हमने रेस्क्यू सर्विसेज, उससे पहले कुछ भी नहीं थी। देयर वाज नो नंबर जहां पे आप डायल करते। तो आज एम्बुलेंस सर्विस जो हमने शुरू की उसने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया, और उसके साथ सर्च एंड रेस्क्यू टीम, और फिर उसके बाद हमारी फायर टीम जो बन के आज सर्च एंड रेस्क्यू का सिस्टम था उसकी वो आज पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आइडिया दिया कि जी इसको एज ए सिविल डिफेंस की बजाय एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश करें। इट वाज लाइक अ मिशन इम्पॉसिबल। ना कोई ट्रेंड स्टाफ था, ना हमारे पास सिस्टम था। तो इमरजेंसी नंबर और सिस्टम जो बनाया आज अल्लाह का शुक्र है कि उसकी वजह से पंजाब में पहले इस्टेब्लिश हुआ, फिर हमने खैबर पख्तूनख्वा को ट्रेन किया, और वहाँ पे जो सर्विसेज थी उसकी वजह से आज पहले से हमारी डिप्लॉयमेंट थी, और उसकी वजह से जो है हम रिस्पॉन्ड कर सके टू दिस बिग इमरजेंसी। ये 3 फेजेस में पहला था मॉनसून रेन जिसमें अर्बन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रिजवान साहब। कॉल्स का सिलसिला तेज हो गया। अब हमारे साथ अगले कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं ह्यूस्टन से बोल रही हूँ। मैंने नाम नहीं बताना, मैंने खान साहब से बात करनी है। मैं $25,000 दूंगी $, एंड और आपके लिए बहुत दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और हमारे मुल्क के लिए आप बहुत अच्छे लीडर हैं, और अल्लाह ताला आपके हर ख्वाहिश जो आपके दिमाग में है मुल्क के लिए वो अल्लाह पूरी करे। बहुत शुक्रिया। 50 लाख रुपया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब? डॉक्टर मोहसिन हसन, मैं मिजूरी से बात कर रहा हूँ। जी जी सेंट लुइस। जी डॉक्टर साहब जी बोलिएगा। मैं खान साहब को क्लोज कर रहा हूँ $10,000 फ्रॉम मिजूरी और सेंट लुइस मिजूरी चैप्टर फॉर PTI। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जी समी इब्राहिम साहब, आप कुछ कह रहे थे? सबसे जो आज खूबसूरत बात जो है जो आपने कही खान साहब, जो ज़रूरत थी इस वक्त जब आपने ये अनाउंस किया कि जो चैरिटी की अमाउंट आएगी वो पूरे पाकिस्तान में खर्च की जाएगी। और आपको पता है इस वक्त जो बाहर सिचुएशन है, हम मीडिया की भी अगर बात करें तो 2-3 चैनल हैं जो इस टेलीथॉन को दिखा रहे हैं। लोगों को और ज़्यादा पॉलिटिकली डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, और आज जो प्रोपेगेंडा किया गया एक ऑडियो कॉल को बुनियाद बना के, तो आपका जो ये अनाउंसमेंट है, जो यहाँ पे मैं माहौल देख रहा हूँ जिसमें आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ज़ख्मों को उन पर मरहम रखने की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद के पर्चे दर्ज हैं, आप कह रहे हैं कि मैं सिंध से भी बात करूँगा, मरकज़ से भी बात करूँगा। आई थिंक दिस इज़ द इंस्पिरेशन। ये वो मैसेज है
जो कौम पूरी देख रही है, और आपसे खौफजदा भी लोग इसीलिए जी हैं हमारे कि ये साथ जो कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? अब्दुल मजीद कुरैशी, कनाडा से अब्दुल मजीद कुरैशी साहब। जी खान साहब से आप मुखातिब में बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान। जी वालेकुम सलाम। जी मजीद। बस और कुछ नहीं है, दुआ है आपके लिए। शुक्रिया। अच्छा फैसल, चूंकि और भी वो गेस्ट को बैठाना चाह रहे हैं। जी आई डोंट हैव वर्ड्स। जी बात कीजिए। जी मजीद। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आमीन आमीन जी। आई एम योर फुट सोल्जर इन कैलगरी से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर। मैं वैसे समी की एक बात करना चाहता हूँ। जी आपने बिल्कुल बात ठीक की कि इस वक्त सारी कौम को हमने इकट्ठा करना है। सारी कौम को हम इकट्ठा करेंगे जो फ्लड मुतासरीन की मदद करने के लिए। मैं जिस तरह आपने कहा कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, हम सिंध गवर्नमेंट से, क्योंकि ये कोई एक जिस तरह मैंने कहा ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट इतने बड़े सानिया से लड़ सकती है, ना कोई मिल के भी गवर्नमेंट्स नहीं लड़ सकती जब तक कौम ना इकट्ठी हो। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इधर मैं इनकी सबके साथ मिल के करूँगा, लेकिन भरपूर तरीके से हकीकी आज़ादी की मैं जंग लड़ूंगा, उससे पीछे नहीं मैं हटने लगा। जी चीफ मिनिस्टर भी थे पंजाब के, और आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, और जो बात अली हमजा ने की, मैं उधर से बात आगे बढ़ाना चाहता था कि आपको दोनों सूबों से कोई फ्यूचर के लिए एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट करनी चाहिए। आपने खुद भी बड़ा उसका एक्सप्लेन किया, लेकिन 70 साल से हर 3-4 साल के बाद इस तरह का डिज़ास्टर आता है, और ये पानी जो है सिर्फ तबाही के लिए नहीं है, बल्कि ये पानी हमें चाहिए भी, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको प्रिजर्व नहीं कर सके। उसमें कीजिएगा, साबर शाकिर ने 10% रखा, 15% ऑफ माई मंथली सैलरी मैं वो फैसल को चेक दे दूंगा। ऐलान मैं नहीं करना चाहता, मैं चाहता FIA मुझे उठा ले, लेकिन लिख लें। ये मुश्किल ये है कि वो जो देखते हैं कि वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पहले धमकी मिलती है, फिर उनके ऊपर केसेस होते हैं, फिर वो बेचारों को कोई मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। इसलिए खान साहब वो तो हर हफ्ते बुला लेते हैं हमें। ऐसा है नहीं, मैं 10 लाख का ऐलान कर रहा हूं और मैं इंतजार करूंगा कि मुझे धमकी मिलती है। सर आपसे आफ्ताब इकबाल साहब ने 10 लाख का ऐलान किया जी। लिख लीजिए 10 लाख का। ये पहले नहीं बताना था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ। 10 लाख का लिख लें आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ से। जी अनवर मकसूद साहब। जी अनवर मकसूद साहब कराची से। जी चलाइएगा जी, चलाइएगा मैसेज चलाइएगा। कि नींदो अफ्तूस होती है ए चश्मे गिरिया नाक, मिशका तो खोल शहर को सैलाब ले गया। पानी पानी पानी, यहाँ पीने का पानी नहीं है, मगर लोग डूब रहे हैं। आज इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात ने उनके लिए पैसे इकट्ठा करने का सोचा है। तो आइए, जिस तरह आप इस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, इस काम में भी आप PTI की मदद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी कॉल्स का सिलसिला जारी है। मैं कंट्रोल रूम से एक गुजारिश करूंगा कि आपकी स्पीड से फिर मैंने तेज चलना है, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स अब भेजें। आखिरी कुछ मिनट है, मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ वक्फा लेना जरूरी है, तो हम छोटा सा खान साहब वक्फा लेते हैं, वो जरूरी है। फिर वक्फे के बाद वापस आते हैं। तो मारिया से भी बात करूंगा, चौधरी परवेज इलाही साहब यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। वक्फा जी। मैं अमेरिका से कॉल कर रहा हूँ, 22 करोड़ रुपए कमिट कर रहा हूँ। 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की इमदाद फिल फॉर इमीडिएटली आपको दे रहे हैं। 5 मिलियन रुपीस ना पाकिस्तानी बॉक्सर जो आमिर खान। अच्छा ये आमिर ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। सैलाब मुतासिरीन की मदद। इमरान खान की अपील पर दर्द दिल रखने वालों ने खजानों के मुंह खोल दिए। टेलीथॉन में सैलाब ज़दगान के लिए 2.25 अरब से जायद के एहतियात जमा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मदद में पेश। अमेरिका से एक ओवरसी पाकिस्तानी का 22 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। बॉक्सर आमिर खान ने 50 लाख, अली अमीन गंडापुर ने 1 करोड़, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का 3 करोड़ इमदाद का ऐलान। एक शहरी ने उम्र के 10 लाख रुपए फंड दे दिया। एक बच्चे ने पॉकेट मनी चंदे में दे दी। नशरियात से पहले ही लाखों डॉलर्स के एहतियात बुक हो गए थे। इमरान कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग भारी मिकदार में आ रही है, हमें बहैसियत कौम अपने सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। इमरान खान की टेलीथॉन पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बन गई।
हवा न्यूज जिनकी नशरियात को तो बंद किया हुआ है। प्रेसिडेंट सलमान इकबाल साहब ने 3 करोड़ रुपया ARY फैमिली की तरफ से। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने जो आपकी नशरियात बंद की है सिर्फ इसलिए सख्ती किया कि वो मुझे दिखाते हैं। इस जुल्म के खिलाफ मैं खड़ा हूँगा। ARY नेटवर्क हमेशा पाकिस्तान की खिदमत में पेश। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल का 3 करोड़ रुपए अतिये का ऐलान। इमरान खान का खैर मकदम, कहा जैसे हकीकी आज़ादी की तहरीक चला रहा हूँ वैसे ही ARY की बहाली के लिए काम करूँगा। एक फासिस्ट हुकूमत आज़ादी इजहार राय को दबा रही है। मीडिया हाउसेस को धमकी दी जाती है कि इमरान खान को कवरेज ना दो। हकीकी आज़ादी की तहरीक भी जारी रहेगी और सैलाब मुतासरीन की मदद भी करेंगे। IMF ने पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल कर दिया। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कौम को मुबारकबाद। कहते हैं पाकिस्तान ना दहिंदा होने से बच गया है। IMF से कर्ज की 7वीं और 8वीं किस्त मिल जाएगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि हम पर IMF की किस्त रोकने का इल्ज़ाम लगाया गया जो झूठा साबित हो गया। मिफ्ता इस्माइल अब माफ़ी मांगें, कोई ऐसी बात नहीं की कि IMF के साथ डील मंसूख कराई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली से मुताल्लिक़ खुसूसी टेलीथॉन एक मरतबा फिर आपको दिखाते हैं जो बराह रास्त जारी है। अब साथ चलें, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले। आज पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है और क्या ही जबरदस्त जज्बे और यकजहती का मुजाहरा खान साहब कर रही है कि इस वक्त तक मैं आपको बताऊं कि हमारा टेलीथॉन जारी है और अब तक टेलीथॉन में 214 करोड़ रुपया एक तरफ इकट्ठा हो गया, प्लेज हो गया, प्लेजेस आ गई और उसके ऊपर 200 करोड़ रुपया अभी थोड़ी देर पहले ह्यूस्टन से रीहैब के ऊपर उन्होंने प्लेज किया है। तो 414 करोड़ रुपया यानी कि 4 अरब 14 करोड़ रुपया अब तक इकट्ठा हो चुका है जी। माशाल्लाह, जज्बा है इसको। यानी पैसा ज्यादा इकट्ठा हो गया है और फैसल की गिनती पीछे रह गई। 4 अरब 2 अरब हो गया, 2 अरब प्लेज किया रिहैब के लिए और 13 करोड़ रुपया 14 करोड़ रुपया हमारे बैंक में आ चुका है वेबसाइट के जरिए जो आया और वो है floodrelief2022.punjab.gov.pk। टेलीफोन नंबर मुझे कह रहे हैं जी, मैं रिपीट करूं, टेलीफोन नंबर है आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 00924236361589। ये स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ है कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं रिजवान समद बोल रहा हूँ, फॉरेन फंडिंग एजेंट सियाटल से, जिनको खान साहब ने 2009 में ट्रेनिंग दी थी। रिजवान समद, सियाटल। हाँ, जिसको खान साहब आपने 2009 में फॉरेन फंडिंग की ट्रेनिंग दी थी। आपका ये जिहादी जो है ना, अब वो फॉरेन फंडिंग की ट्रेनिंग में लग गया है और हम जिहादी बन गए हैं और हम इसको जिहाद करते रहेंगे मरते दम तक। सैटरडे के दिन हमने 1.7 मिलियन डॉलर रेज करके वहां पे फ्लड में भेज दिया है। आपका जिहादी इसाकदार ने लंदन में इस रिजवान समद को फॉरेन फंडिंग एजेंट के नाम से ट्वीट कर दिया है। हम बहुत खुश हैं कि हम जिहादी हैं और फॉरेन फंडिंग एजेंट हैं। वह खुदा के लिए आप पाकिस्तान को छोड़
बूसा भी पैदा करता है। मैं पाकिस्तानी कौम से इंतजार करता हूँ कि वो उस बूसा को तलाश करे और उसकी आंखों में रिजवान, थैंक यू रिजवान। बिल्कुल, अब देखो अगर ज्यादा बोले FIA का लेटर आ जाएगा आपको फॉरेन फंडिंग के ऊपर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर शाहिद महमूद इंग्लैंड हडर्सफील्ड से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी, मैंने उस्मान गुलजार साहब के दौर में मखदूम तारिक साहब के बाद वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के तौर पे खिदमात अंजाम दी हैं। मैं यहाँ पर कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हूँ। इसके अलावा मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हेल्थ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया था और मैं पहला पाकिस्तानी क्वालिफाई करने वाला हूँ हेल्थ इकोनॉमिक्स के तौर पे। मैं इमरान खान की खिदमत में 50 लाख रुपए का अतिया पेश करता हूँ और ये सैलाब ज़दगान के लिए की खिदमत के लिए है। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी कामयाबियों के लिए दुआएं और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं। जी, ढेरों दुआएं आपके लिए भी। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, परवेज भाई साहब, आप कुछ बता रहे थे MPS अपनी तनख्वाह। MPS ने भी अपने एक माह की जो तनख्वाह है ना, वो उन्होंने ऐलान किया है। कैबिनेट ने तो आज ऐलान कर दिया था। और बाकी जो असम्बली का स्टाफ है ना हमारा, वो हज़ारों में है और वो 17 ग्रेड से ऊपर वो तो एक भी नहीं कर रहे हैं और जो दूसरे हैं वो एक दिन के लिए कर रहे हैं। सही, बहुत अच्छे। कुछ 4000 के करीब हैं वो। वेरी गुड। कॉल हमारे साथ अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी कॉल दोबारा ट्राई कीजिएगा जी। तो हमें शिफा यूसुफ जई साहिब आपने भी ज्वाइन कर लिया है। फातिमा आप भी हमारे साथ हैं। मारिया आप भी हैं। मारिया, आप पहले बताएं, क्योंकि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ सच अ ह्यूज कैटास्ट्रफी ऑन सच अ लार्ज स्केल कि इस वक्त आई थिंक एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन अंडर सानिया निश्तर इज़ द बेस्ट आइडिया। वी सच बिग फैंस एंड फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम मारिया बी होल्डिंग्स, आईड लाइक टू कंट्रीब्यूट 1 करोड़ रुपया for this amazing initiative. Thank you so much. Thank you for giving us the opportunity. नहीं, और मुझे ये शिफा ने भी एक चेक दिया हुआ है, मैं अनाउंस नहीं करूँगा, बड़ा हैंडसम अमाउंट है। और मैं एक और ख़ास तौर पे एक सजाद हैदर हैं जो हमारे वॉर हीरो रह चुके हैं। 1965 के अंदर एयर कॉमोडोर थे। उनकी बड़ी उनका बहुत बड़ा नाम है एयरफोर्स के अंदर। तो उन्होंने ख़ास तौर पे आज 90 साल के, उन्होंने मुझे आके ख़ास तौर पे डोनेशन दी है इसके लिए। वाह। जी फातिमा, आप क्या कहना चाहिए जितने भी कॉलर आ रहे हैं? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया, आपने पूरी कौम को फिर से हमेशा की तरह इकट्ठा किया है। ये इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि इस मौके के ऊपर जिस तरह से हम सारे इकट्ठे हुए हैं, अगर हम आगे पीछे भी इसी तरह से अगर कर सकें तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा सकता है। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि शौकत खानम के लिए अब तक 70 बिलियन आप इकट्ठा कर चुके हैं, तो फिर ज़ाहिर है दुख होता है जब वो छोटे मोटे केसेस में आपके बारे में होता है। आई नो दिस इज़ नॉट द टाइम, बट एनीवे आई वांटेड टू से दैट। और बाकी अपनी कौम से ये कहना चाहूँगी कि चाहे 100 रुपया हो, चाहे जितना भी हो, हम सबको इस वक्त मिल के करना है। और शान ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि ये एक दिन की बात नहीं है, दिस इज़ एन ऑन गोइंग थिंग। अभी बहुत लंबा अरसा लोगों को रिहेबिलिटेशन करने में लगेगा, तो हमारे साथ रहिए। और खान साहब बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं असद फैजी बात कर रहा हूँ सियाटल से। जी असद भाई, क्या हाल चाल है आपके? मुझे अपने वजीर आजम से बात करनी है, अपने प्राइम मिनिस्टर से। जी वजीर आजम साहब, वो यहाँ नहीं है जी। जी प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करनी, मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी। थैंक यू जी। जी 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 हाँ साहब, मैं असद फैजी बात कर रहा हूँ सियाटल से। और हम सियाटल से सबने हमें कुछ मिला के $75,000 प्लेज किए हैं। मैं अपनी जो प्लेज है $25,000 दे रहा हूँ। और उसके अलावा मैं एक दो चीज़ें और आपसे क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि हम ये जो पोर्टल है फॉरेन फंड हमने जो बनाया है फ्लड रिलीफ 2022.punjab.gov.pk, अभी तक इससे $600,000 रेज हो चुके हैं, जबकि ये बहुत देर से अभी घंटा पहले लॉन्च हुआ था। अगर और मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हमें आई थिंक वी नीड टू प्रमोट इट मोर।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसान है। अच्छा, और एक चीज़ और मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा था कि कुछ ट्रांजैक्शंस हैं क्रेडिट कार्ड के जो कि रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो अमेरिकन बैंक हैं वो केयरफुल हैं ज़्यादा। अगर किसी का क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो रहा है तो प्लीज़ अपने बैंक को कॉल करें और उनसे कहें कि ये लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने अपने बैंक को कॉल की, फिर वो ट्रांजैक्शन चली गई। तो मेरे ख्याल में हम इससे आराम से $4-5 मिलियन रेज कर सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये जो पोर्टल है इससे पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानियों से। बहुत बहुत शुक्रिया आसद फैज़ साहब। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। आपने बताया कि $6 लाख हमें बताया जा रहा है, $600,000 जो हैं वो वेबसाइट के जरिए आए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, दिस इज सजाद बर्की, ह्यूस्टन टेक्सास से बोल रहा हूँ मैं। जी जी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना वक्त निकाल के, और खान साहब का कि वो इस काम के लिए इतना डेडिकेट कर रहे हैं अपना टाइम और एफर्ट। हम लोग यहाँ पे ह्यूस्टन में बैठे हुए जो हमारे डोनर्स हैं और जो बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ के पाकिस्तान को बल्कि सारी वहाँ की एक्टिविटीज़ को, हम अपनी तरफ से 20 मिलियन रुपीस का डोनेशन जो है वो देना चाह रहे हैं टू दिस एफर्ट। वी वांट टू थैंक यू। और दूसरी एक बात मैं जल्दी से जो कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा होगा अगर हम अनाउंस कर सकें एक यूएस के अंदर डेडिकेटेड अकाउंट जो कि नॉन प्रॉफिट अकाउंट हो जिसमें कि ये लोग पैसे दे सकें, उससे हम बहुत ज्यादा लोगों से ये डोनेशन ले सकेंगे। तो आई होप वी कैन डू दिस वेरी क्विकली। थैंक यू साहब, शुक्रिया। कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? जल्दी बात कीजिएगा। शहरियार अफरीदी बोल रहा हूँ। फैसल भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई और सबको, मैं और मेरी टीम ने 1.5 करोड़ रुपए अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे किए हैं और हैट्स ऑफ टू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। और अल्लाह ने स्पेशली चूज किया है खान साहब को, और एक सोल्जर के नाते ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसमें अपना रोल प्ले करें और अल्लाह इस काम में खास मदद और अपनी खास करम नवाजियाँ शामिल करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अगले कॉलर जी। 500 करोड़ प्लेजेस के और रिहैब के मिला के 500 करोड़ ये फिगर टच हो गया आज के इस टेलीथॉन में। इसमें 200 करोड़ वो रिहैब वाले शामिल हैं, तो 500 करोड़ का फिगर क्रॉस कर लिया है। ये जज्बे को आपके सलाम पाकिस्तानियों, जहां पे भी हैं आपके जज्बे को भरपूर सलाम। और क्या ही बात है। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी काजी हबीब बोल रहा हूँ जी, प्रेसिडेंट पीटीए जर्मनी। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, आपने जो जाले छोड़े हुए हैं 1996 से, वो पाकिस्तान के लिए हम वक्त दरकार हैं और हम वक्त वो डोनेशन देने के लिए आपके लिए, क्योंकि आप पे वो बेहद एतमाद करते हैं। मैं अपनी तरफ से 20 लाख रुपया दूंगा और मेरे दोस्त जो है अभी लाइन पे आएंगे इंशाल्लाह 1 करोड़ से ज्यादा वो भी डोनेट करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? मैं शाहरुख जमाल भट्ट बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी शाहरुख, वालेकुम सलाम। खान साहब, मेरी पीटीआई के हवाले से आपसे वाबस्तगी भी है। पीटीआई का मैं पार्ट भी हूँ, बट पॉलिटिक्स अपार्ट, अभी हमारे मुल्क को सैलाब ने घेरा हुआ है। 70% जो एरिया है वो डूबा हुआ है। तो सर, आई वुड लाइक टू डोनेट 1 मिलियन रुपीज़। आप बड़े अच्छे काम के लिए, ये जो आपने कॉज के लिए मैं ये डोनेट करना चाहता हूँ। और ये जितने भी पैसे खान साहब अभी इकट्ठे हुए हैं, ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि लोगों का आप पे ट्रस्ट है और आपने इस मुल्क के साथ वफा की है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये अवाम भी वफा का बदला वफा से देगी इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी छोटी सी बात मैं करना चाहूँगी, और क्योंकि हम यहाँ पर एक बड़े नोबल कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं, पूरी कौम को हमारी ज़रूरत है। जिस एतबार की खातिर हम यहाँ पर बैठे हैं खान साहब पर, उसी एतबार के हवाले से एक छोटी सी कहानी नाजरीन को सुनाना चाहूँगी ताकि मज़ीद कॉल्स आएँ। वैसे तो यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन अगर हम ऑनेस्टी और अपराइटनेस की बात करें। एक शख्स जिसके वालिद साहब 2007-8 में बीमार थे
اور وہ ایک ہسپتال میں ایڈمٹ تھے اور ان کا بیٹا ان کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ اس ہسپتال کی پالیسی یہ تھی کہ خاص آورز کے بعد اس کمرے میں انٹر نہیں کیا جا سکتا. وہ ہسپتال شوکت خانم تھا اور وہ بیٹا عمران خان تھا. تو جس آدمی کی اصول پرستی کا یہ عالم ہو تو آپ لوگوں کو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو تھوڑے سی بھی شک اور شبے کی ضرورت ہے کہ یہ پیسہ ان لوگوں تک پہنچے گا یا نہیں جن کے لیے جمع ہو رہا ہے. This is all I wanted to say and this is why I came here today. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے, ویب سائٹ بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے اور وہ اکاؤنٹ نمبرز بھی آپ کے آ رہے ہیں. ایک سی ایم فلڈ ریلیف فنڈ ہے پنجاب اور دوسرا ہے سی ایم فلڈ ریلیف فنڈ خیبر پختونخوا. یہ ساری ڈیٹیل آپ کی آ رہی ہے. جن لوگوں کی پروگرام میں کال نہیں مل سکی وہ ان اکاؤنٹس میں جمع کروا سکتے ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹیلی تھون تو آج لانچ ہوا ہے تو آئندہ بھی نشست ہوگی تاکہ لوگ جو ہیں ٹیلی تھون کا حصہ بھی بن سکیں آئندہ بھی. دیکھیے یہ اصل میں جو چیلنج ہے, جو امتحان ہے پاکستان کے لیے, یہ کوئی 2020 میچ نہیں ہے, یہ ٹیسٹ سیریز ہے پوری. یعنی اس کو یہ بڑا لمبا چلے گا. پہلا فیز اس وقت لوگوں کی جانیں بچانی ہے. لوگ ایکسپوزڈ ہیں, لوگوں کے پاس ان کے گھر نہیں ہیں, اس وقت چھتیں نہیں ہیں ان کو. آپ تو پہلی چیز ان کو ہم نے ریلیف پرووائڈ کرنی ہے. تو پہلا تو یہ جو پیسہ یہاں اکٹھا ہوگا انشاءاللہ وہ گورنمنٹ علیحدہ ان کی اپنے بجٹ سے پیسہ دیں گی اور یہ جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہوتا جائے گا ریلیف میں جائے گا. لیکن اصل میں ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے گی جب ان لوگوں کے گھر بنانے ہوں گے, ریبیلیٹیشن, جس طرح بھی سی ایم صاحب نے بتایا کہ کیسے اب آپ ان کے گھر جب تباہ ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے ہزار گھر تباہ ہو گئے تو وہ پھر دوسرا فیز آئے گا اس کا. اور پھر گورنمنٹس کے اوپر پریشر پڑے گا کیونکہ پل ٹوٹ گئے ہیں, سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, وہ ایک علیحدہ بہت بڑا ایک خرچہ آئے گا. تو میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ اس طرح کا جب امتحان آتا ہے تو یہ صرف قوم مل کے لڑ سکتی ہے. دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان بالکل تباہ ہو گئے تو وہ قومیں نے مل کے 10 سالوں میں وہ پوری تباہ ہوئی قومیں کھڑی ہو گئی پھر سے اور جائنٹس بن گئے. تو ہمارے لیے بھی ایک اللہ کا چیلنج ہے کہ یہ اب مسئلہ آیا ہوا ہے اور اس نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ جب تک ہم سب مل کے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے یہ بڑا مشکل ہوگا, اس کے اثرات بڑی دیر تک رہ جائیں گے. تو انشاءاللہ جو ہماری کوشش ہے کہ ایک اوور آل ایک نیشنل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ, ایک قوم مل کے انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہمارے ساتھ کالر ہے ایک. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے؟ میں سعید شیخ بات کر رہا تھا, ہیوسٹن ٹیکساس سے. جی ہیوسٹن سے سعید شیخ صاحب. جی بات کیجئے گا. عمران خان صاحب جی میں بہت, ہم پاکستانی امریکن جتنا ہمارا ڈائسپورا ہے وہ بہت ہی غمگین ہے. جس طرح کے پاسٹ میں ہم نے ایز اے یونائٹیڈ کمیونٹی بہت سارے ایفرٹس کیے ہیں. ہمیں خان صاحب کی پچھلی کال بھی یاد ہے اور ہم اپنے چیف پیٹرن سے جاوید انور کے ہمراہ اس میں موجود تھے اور ہم نے اپنی سپورٹ لانچ کی تھی. یہاں پہ یونائٹیڈ کمیونٹی ایفرٹس آلریڈی لانچ ہو چکے ہیں اور آج بھی ہماری ایک میجر میٹنگ ہے اور ہم بہت ساری ایفرٹس جو ہے وہ ایز اے یونائٹیڈ کمیونٹی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم فالو کرتے رہیں گے اور ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں. اور کئی پروجیکٹس آلریڈی ہم کر چکے ہیں لاسٹ فیو ایئرز میں جس کی $3 ملین سے زیادہ ورتھ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے یونائٹیڈ کمیونٹی الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف پاکستانی امریکن کمیونٹی ہر ایفرٹ میں ساتھ ہے اور آج شام کی میٹنگ میں ڈٹرمن ہوگا کہ کس لیول کا میجر ہم. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہے جذبہ جنون تو ہمت نہار. سلمان احمد جنون آپ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے کوئکلی کیونکہ کالر بھی لائن پہ. جی فیصل, میں خان صاحب کو دیکھ کر یاد آ رہا تھا کہ 1988 میں لاہور کے الحمرہ آرٹس کاؤنسل میں انہوں نے سب سے پہلا SKMT کا جو فنڈ ریزر کیا وہ والا دن ہے اور آج کا دن ہے کہ لوگ اب 32 سال ہو گئے اس بات پہ, زیادہ 34 سال ہو گئے, جس طرح لوگ دیتے جاتے ہیں اور ان کا ٹرسٹ ہے خان صاحب میں 34 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اور آج 500 کروڑ لوگوں نے, مطلب کہ 500 کروڑ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے اندر جمع ہو گیا. تو میں مبارکباد دیتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اور زیادہ بڑھے.
बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हमारी जो बहनें ये टेलीथॉन देख रही हैं पूरी दुनिया में, उनसे अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आगे बढ़ें, क्योंकि सोचें आज रात हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे जो पानी में रात गुजारेंगी। बहुत से लोग उनको वो कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, बच्चे स्पेशली, वो माएँ जो ये देख रही हैं, एज अ मदर मैं आपसे अपील और इल्तिजा करना चाहूँगी कि बच्चों को अभी वाटर बॉर्न जो बीमारियाँ हो रही हैं, हमें ये जो फंड्स आ रहे हैं उसके लिए दवाइयाँ ख़रीदनी हैं, उनके लिए ग़िज़ा हमने भेजनी है, न्यूट्रिशन का बड़ा मसला है बच्चों के लिए अभी। और सोचें पानी में क्या क्या चीज़ होगी, स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं लोगों के, डायरिया हो रहा है, इतने बुरे हालात हैं अभी, इन लोगों को दवाइयों की सख्त ज़रूरत है। तो अल्लाह के वास्ते जो बहनें सुन रही हैं, मेरी अपील, आप प्लीज़ आगे बढ़ें, और बच्चे जो यूथ है, जो भाई बहन, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ। सेल्फ रिलायंस, सबसे बड़ी आज का जो मैसेज है वो सेल्फ रिलायंस का। सेल्फ रिलायंस जो है कि पाकिस्तानी जब जमा होते हैं, अब 3 घंटे में 500 करोड़ अगर इकट्ठे कर सकते हैं तो हम अपने कर्जे क्यों नहीं उतार सकते। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं कौसर सलामत फैसलाबाद से बोल रही हूँ। जी खान साहब से, जो आपने हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए किया वो बेमिसाल है। आपकी इन खिदमात को आने वाली नस्लों तक याद रखेंगे। मेरी तरफ से 20 लाख की डोनेशन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये जो सेल्फ इस्टीम खान साहब आपने इस कौम की बहाल की है, जो खुददारी खुद मुख्तारी, आज इस ट्रांसमिशन में उसका वाज़े सबूत मिला है कि ये कौम किसी और पे डिपेंड नहीं करती, सिवाय अल्लाह के किसी पे डिपेंड नहीं करती, और ये कौम अपनी मदद खुद करना जानती है अल्लाह के फजल से, कि विद इन नो टाइम 500 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे प्लेजेस जो हैं वो हो चुकी हैं आज के टेलीथॉन में। अब वक्त कम है और हमारा ये ख्वाहिश थी कि हम मजीद कॉलर से भी बात कर सके। हमें कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है कि बेतहाशा कॉल्स जो है अभी भी आ रही है, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम 25,000 पाउंड एक कॉल लंदन से हमारे दोस्त हैं, वो 25,000 पाउंड, रियाज साहब उनका नाम है, वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं उनकी तरफ से ऐसे बेशुमार हैं जो रस्ते में 25,000 पाउंड उनकी तरफ से भी इसमें ऐड करें प्लेजेस के। मेरी सजेशन है कि एक और ये एक सीरीज ऑन गोइंग, अगर ये टेस्ट सीरीज है, और खान साहब का तो ये एक उस्लूब रहा है कि आए और फिर इन्हें निकाल दिया गया, जब वापस आए तो वक्त डाल दिया, फिर निकाल दिया गया, फिर आप देख लें टेस्ट सीरीज के लिए बाहर, बड़ी देर बाद फिर वापसी, उसके बाद फिर कैरी पैकर, फिर हुकूमत से निकाला, और आज देख लें अल्लाह के फजलो करम से वो ग्राफ जो ज़मीन दोस्त था कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। और ये फकीदुल मिसाल है पूरी की पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में इस वक्त कोई एक कैरेक्टर है मुस्लिम वर्ल्ड में, तो वो खान साहब का है। तो ये, और खान साहब जिस तरह आप कौम को इकट्ठा कर सकते हैं ना, आई हैव टू से कि देयर इज नोबडी एल्स। कौम को क्या, मैं तो कहती हूँ उम्मत को, बल्कि सीरियसली देखिए जी, कौम जब बन जाती है ना, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपनी ज़्यादा ज़िंदगी तक पाकिस्तान कौम नहीं बनी। थोड़े से टाइम थे 65 वॉर में, सीएम साहब को याद होगा, तब एक कौम नज़र आई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम बने नहीं कौम। मुझे ये जो 4 महीने में मैंने देखा है, मैं ज़िंदगी में, अपनी सारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि सारा एक हजूम जो है ना वो कौम बनता जा रहा है। बेशक। और ये सबसे खुशाइन चीज़ ये है, देखें आज आप बात कर रहे हैं हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, हम क्यों IMF के पास जाते हैं, वो क्यों हमें कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारा बैरूनी मुल्क कर्जा है। अब आप ये सोचें कि 1 करोड़ बाहर पाकिस्तानी है। आज आपने देखा कि असल पैसा फॉरेन फंडिंग से आया, यानी कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजा है। अब ये जो लोग हैं, ये बहुत बड़ा असासा है हमारा। अगर ये हम फैसला एक दिन, मैं जो आगे ख्वाब देखता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला कर्जा है, बैरून मुल्क कर्जा, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, 125 या 30 अरब डॉलर हमारा टोटल कर्जा है।
یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اگر ہم بحیثیت قوم اس کو مل کے اگر ہم یہ فیصلہ جس دن کر لیا, ہم یہ قرضہ اتار دیں گے, اور جس دن قرضہ اتار دیں گے آپ دیکھیں گے کہ قوم جب پیر پہ کھڑا ہو جائے گا تب اس کی پرواز اوپر جائے گی. ہم اب تک یہ جس طرح بدقسمتی سے کہتے ہیں لائف سپورٹ مشین یا بیگرز آر ناٹ چوزرز, وہ مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک ہم ڈرپس میں جا رہے ہیں, ہم قرضے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے اور قرضے لیتے ہیں, اور ہم بالکل ایک اپنی جو آزادی ہے, جو خودداری ہے, وہ کھو بیٹھے ہیں. وہ آئے گی انشاءاللہ. جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب ہم قوم بن گئے, یہ سب سے خوشائن چیز ہے ہمارے لیے. اور یہ انشاءاللہ جس طرح جرمنی جاپان تباہ ہوئے ملک کھڑے ہو گئے پھر سے, کیونکہ وہ قومیں تھیں, تو وہ اس طرف راستہ جا رہا ہے. اور مجھے بڑا اللہ پہ امید ہے کہ ہمارا جو ملک کا جو راستہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے خاص یہ خود حکومت وہ یہ سوچ لیا ہو فیصل جاوید صاحب جی کہ حکومت ہم کرتے ہیں, عمران خان کو قوم اکٹھی کرنے پہ لگا دیں کہ 5 سال میں ہمیں قوم بنا دیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ سب سے زیادہ میں فلڈ کے لیے کام کروں گا انشاءاللہ. سب سے زیادہ وقت بتائے گا یہ, لیکن اس سے اتنی تیزی سے حقیقی آزادی کے لیے بھی کام کروں گا کہ میں کبھی کسی صورت یہ قبول کر ہی نہیں سکتا کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو میرے اوپر مسلط کر دیں اور کہیں کہ جی سیلاب آ گیا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. یہ نہیں ہوگا. دونوں انشاءاللہ ساتھ ساتھ کروں گا, اور دونوں ملک کے لیے. دونوں ملک کے لیے بالکل. یہ حفیظ چودھری صاحب جو امریکہ سے تھے, 1 کروڑ روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں ریسیو بھی ہو چکے ہیں جی. تو پلیجز بھی آ رہی ہیں اور ساتھ میں لوگ آپ کرنا. تو پلیج جب لوگ کرتے ہیں تو یہ تو اللہ سے وعدہ ہوتا ہے اور اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, تو جتنا جلدی ہو سکے آپ ٹرانسفر بھی کر دیں, اور پھر ہم دوبارہ آپ کے لیے یہ ٹیلی تھون لے کے آئیں گے. لیکن اکاؤنٹ نمبر آپ نوٹ فرما لیں, اسکرین پہ بھی آ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہر جگہ ہیں, ویب سائٹ بھی آ رہی ہے, تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں آخر میں, اور ہم سب کی دعا ہے کہ اس نیک کام میں اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامل شال رہے, اپنا شامل حال رہے. بھرپور دعائیں آپ کے لیے. تو آپ مولانا طارق جمیل صاحب سے درخواست ہے کہ دعا کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہم اس وقت چندے اکٹھے کر رہے ہیں, تو عمران بھائی نے بھی ایک کوشش کی کہ لوگوں سے اپیل کی جائے. یہاں تو ارب روپے بھی ناکافی ہیں, اور پتہ نہیں کتنے سالوں میں جا کر یہ نقصان پورا ہوگا. تو اتنا بڑا پچھلے 60 سال میں اتنا بڑا طوفان نہیں دیکھا. ہم سب توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. تو میں اس ٹیلی تھون کے ذریعے اس کی وساطت سے آگے سارے پاکستانی بھائیوں کو ساتھ ملا کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری یہ مصیبت ٹال دے, اور یہ جو نقصان ہوا ہے یہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں پاکستان کے پاس کہ اس نقصان کو جلدی پورا کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ باہر جو ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں ہاتھ بٹھائیں, اور جو گھر گر گئے وہ ہم دوبارہ بنائیں, جو نقصان ہوئے وہ ہم پورا کریں. باقی جو ڈوب کے مر گئے وہ تو سارے شہید ہیں, وہ سب جنتی ہیں اللہ کے فضل سے, کہ الغریق الشہید, میرے نبی کا فرمان ہے کہ ڈوب جانے والا شہید ہوتا ہے. تو اب ہم دعا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین و یا رب محمد یا رب محمد یا رب محمد یا رب محمد
या रब मोहम्मद इरहम उम्मत मोहम्मद इरहम उम्मत मोहम्मद इरहम उम्मत मोहम्मद या रहीम कुल्ल सरीक़िन व मकरूबिन व ग़ियासहु व मआदहु अग़िथना व अइज़ना अग़िथना व अइज़ना या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन या खैरल हाफ़िज़ीन या खैरल हाकिमीन या खैरल राहिमीन या खैरल राज़िकीन या खैरल गाफ़िरीन या खैरल गाफ़िरीन या खैरल फ़ातिहीन या खैरल फ़ासिलीन या खैरल नासिरीन या खैरल वारिसीन या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन। या अल्लाह, ये हमारी फरियाद है, तेरे महबूब की उम्मत पर बहुत बुरा वक्त आया है पाकिस्तान में। मेरे मालिक, अपने फज़ल करम से जिन गुनाहों की वजह से ये आफत हम पर आई है वो हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। मेरे मालिक, तेरे महबूब तक भी ये खबरें गई होंगी, चोर का हाथ कटा था तो तेरा नबी रोने लग गया था, तो उनके सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया, मेरे उम्मती का हाथ कट रहा है, मैं क्यों ना रोऊं? तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप ना काटते? आपने फरमाया, ये अल्लाह का हुक्म है, मैं कैसे पूरा ना करता? तुम मेरे पास लाए क्यों थे? तुम वहीं इसी समझा बुझा के इससे तौबा करवा लेते। और इस वक्त तो तैरती लाशें, मासूम बच्चों की लाश। मेरे मालिक, हमें पता है तो हमसे नाराज होती, हमारे पास तुझे राजी करने के लिए दिखाने को चीज ही कोई नहीं है। दामन तार तार है, जिस्म गुनाहों से स्याह है, दिलों में सीनों में गुनाहों की स्याही है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है या अल्लाह, सिर्फ तेरे महबूब की उम्मत होने की एक आस है हमारे पास। मेरे मालिक, अल्लाह, तेरे नबी का फरमान है, नमाज पढ़ाते हुए, हालांकि आप लंबी नमाज पढ़ाते थे, मैं बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ। उस वक्त औरतें भी मस्जिद में जाती थीं नमाज के लिए, तो जब मैं बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ। वो तेरी हाज़िरी को मुख्तसर कर देता था, एक मासूम बच्चे के रोने। या अल्लाह, हमारे हजारों बच्चे पता नहीं कौन सा समंदर में जा गिरी उनकी लाशें, किन मछलियाँ, कौन सी मछलियाँ उन्हें खाएंगी। कितने बूढ़े वालिदैन मेरे मालिक, वो खसो खाशाक की तरह पानी पीते, उनकी तैरती हुई लाशें, पता नहीं कौन सी मछली उनकी कब्र बनेगी। या अल्लाह, हमारे पहाड़ी इलाके बर्बाद, हमारे मैदानी इलाके बर्बाद, हमारे चारों सूबे तेरे गुस्से की ज़द। मेरे मालिक, अपना रहम फरमा। अभी मुहर्रम गुजरा है या अल्लाह, तुझे करबला के शहदा के खून की तुफैल पर करम, अहले बैत के सरों के कट जाने की तुफैल हम पर करम। कोई हमारी झोली में कुछ हो हम तुझे पेश करते कि ये हमारे पास अमल है। या अल्लाह, हम खाली झोलियाँ, खाली पूरा मुल्क मेरे मालिक नाफरमानी की लपेट में। कोई एक तबका नहीं, हर तबका तेरी नाफरमानी में तुला, जैसे तेरे सामने खड़ा होना ही नहीं। या अल्लाह, तो उन शुहदा की तुफैल हमारे ऊपर करम फरमाता, बदर के शुहदा की तुफैल हमारे ऊपर करम फरमाता, उहुद के शुहदा की तुफैल हमारे ऊपर करम फरमाता, अपने महबूब के आंसुओं के तुफैल। या अल्लाह, तेरे नबी सारी सारी रात कहते थे, या रब्बे उम्मती उम्मत उम्मत। एक रात की बेकरारी देखकर आपने जिब्रील को भेजा था कि जाओ पूछ के आओ मेरा नबी क्यों इतना रो रहा है। अल्लाह को तो पता था क्यों रो रहा है,
جبریل نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو؟ تو تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ میری امت کا غم رلا رہا، اور صرف وہ غم صحابہ کے لیے نہیں تھا، پوری آنے والی امت کے لیے، پوری آنے والی امت کے لیے تھا، سارے نافرمانوں کے لیے تھا۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، ہماری حکومت بے بس ہے، ہمارے پاس وسائل کوئی نہیں ہے، ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری حکومت کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں، چاروں صوبوں کے پاس، وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یا اللہ کہ اس تیرے بھیجے ہوئے عذاب کو کون یا اللہ ٹال سکتا ہے؟ یا اللہ تیرے غصے ان مشینوں سے کون اس کو دور کر سکتا؟ تو صرف توبہ ہی۔ میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ توبہ اللہ کے واسطے توبہ کر، واپس آ جا۔ توبہ کہتے بھی واپس آنے کو ہے، اللہ کے رسول کے واسطے نوجوانوں سے کہتا ہوں فحاشی سے توبہ کرو، بدکاری سے توبہ کرو، تاجروں سے کرو، زمینداروں سے، بادشاہوں سے، غریبوں سے، امیروں سے ہم توبہ کر رہے ہیں یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ اس فتنے کو تیرے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا، پوری قوم تباہ ہو گئی میرے مالک، پہلے ہی ہم پر قرضے چڑھے ہوئے اور پہلے ہی تنگ دستی کا حال ہے یا اللہ۔ تیرے محبوب کی امت، تیرے محبوب کی امت، اور قیامت کے دن بھی یا اللہ نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ابراہیم پکاریں گے نفسی نفسی، اسماعیل پکاریں گے نفسی نفسی، یوسف، یحییٰ، یونس، زکریا سب پکاریں گے نفسی نفسی، عیسیٰ پکاریں گے نفسی نفسی۔ یا اللہ صرف ایک آواز ہوگی یا رب امتی یا رب امتی امتی۔ لوگ الٹ کے دیکھیں گے یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ تو میرے مولا وہ تیرا محبوب ہوگا جو اپنی امت کے لیے اس دن رو رہا ہوگا، آہیں پر ہوگا۔ یا اللہ ہم تو لٹے پیٹے لوگ ہیں، ہم تو لٹے پیٹے لوگ ہیں، ہماری دنیا بھی گئی، ہمارا دین بھی گئی، ہماری دنیا بھی گئی، ہمارا دین بھی گیا۔ یا اللہ معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ۔ تیرے عذاب کو ظاہری اسباب نہیں روک سکتے، صرف تیری اپنی رحمت اور طاقت ہے جس سے یہ رک سکتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، جتنے اس میں وفات پا گئے وہ شہید ہیں انہیں جنت الفردوس عطا فرما، جو پیچھے باقی ہیں ان کے نقصان پورے فرما، پوری قوم کو ان کے گھر بنانے کی توفیق دے، ان کے نقصان کا ازالہ کرنے کی توفیق دے، ذخیرہ اندوزوں کو توبہ کی توفیق دے، یہ ریٹ بڑھانے والوں کو توبہ کی توفیق دے۔ یا اللہ کیا ہو گیا ہے تیرے محبوب کی امت، مصیبت زدوں سے نفع کو مت۔ یا اللہ یہ دیس تو تم نے بڑا منفرد ہمیں دیا تھا، تم نے اپنی نافرمانیوں سے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے مالک پچھلے 30 سال سے تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں تو آ جا۔ یا اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے، مجھے معلوم ہے۔ یا اللہ یہ بے بسی کی فریاد ہے کہ اب آ جا، اب تو آ جا، اپنے حبیب کی امت پر اپنا سایہ کر دے۔ یا اللہ باطل کے نرغے میں، باطل کے نرغے میں، یا اللہ تیرے سوا کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا۔ یا اللہ پوری قوم پر نظر کرم فرما دے، تمام طبقات اہل پاکستان پر کرم فرما دے، سب کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ کتنی بوڑھی مائیں رو رہی ہیں جن کی ساری اولاد بہہ گئی، ان کی آنسوؤں کے طفیل میرے ملک کے لوگوں کے گناہ معاف فرما دے اور اپنے عذاب کو واپس
کہاں کر سکتا، پھر ابھی تو آگے حساب بھی ہے اور میزان بھی ہے، پل صراط بھی ہے، اس سے پہلے قبر بھی ہے، جہنم بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ یا اللہ کتنی گھاٹیاں بھی آنے والی ہیں۔ جتنے لوگ اس میں مدد کر رہے ہیں سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، جتنے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں امداد کرنے کے لیے، مالی جانی، سب کو ان کے سارے گناہ معاف فرما۔ جتنے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ان سب کے گناہ معاف فرما۔ جتنی فاؤنڈیشنیں وہاں پہنچی ہوئی ہیں ان سب سے راضی ہو جا، اور جتنے لوگ جو 1 روپیہ بھی دے رہا ہے اس پر بھی تو راضی ہو جا۔ اور یا اللہ پوری قوم کو ہمت دے کہ ہم مقابلہ کہاں کر سکتے، ہم توبہ کر کے تو سے معافی مانگ اور تو اس عذاب کو ہٹا، یا تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم رحمتک یا رحمت۔ تمام ڈونرز کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے فنڈ ریزنگ، چند ہی گھنٹوں میں 5 ارب سے زائد کی رقم جمع ہوئی۔ پاکستانیوں نے دل کھول کر عطیات دیے، نہ صرف پاکستان میں مقیم شہریوں نے کال کی بلکہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی دل کھول کر عطیات کا اعلان کیا۔ ٹیلی تھون میں